और नेचुरली विदाउट द कोरम मीटिंग्स कैन नॉट हैपन। तो कोरम के बारे में क्या बात होती है समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप कोरम पढ़ते वक्त किस तरह से कोरम को अप्रोच करना है, 174 को किस तरह से अप्रोच करना है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाया था। 174 सब सेक्शन 1 के बाद पहले आप 174 को पढ़ लो। दिस वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू रियली अंडरस्टैंड दिस, एंड इसको आसानी से समझने के लिए काफी इजी हो जाएगा। 174 सब सेक्शन 1 it provides that the quorum for the board meeting, or for that matter any sub committee, कोई भी सब कमिटी जैसे कि ऑडिट कमिटी या फिर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी या फिर स्टेक होल्डर्स कमिटी, ये कमिटीज की भी कोरम 174 के हिसाब से ही होती है और बोर्ड मीटिंग की कोरम भी 174 के हिसाब से ही होती है। 174 subsection 1 actually provides 1/3 of the total strength or 2 directors, whichever is less shall be the quorum. Okay, please understand, अगर 9 डायरेक्टर्स हैं तो 1/3 would be 3, तो हम लोग देखेंगे 3 या 2, तो 3 will be the quorum. So 1/3 or 2 shall be the, whichever is less shall be the quorum. So higher, whichever is higher. I'm so sorry, whichever is higher shall be the quorum. Now 174 subsection 1 quorum के बारे में बात करता है। तो अगर कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, वो जिंदा भी हैं और इंटरेस्टेड भी नहीं है, आई रिपीट, 1/3 और 2 वाला प्रोविजन हमको पता है। मैं बोल रहा हूं कि अगर कंपनी के डायरेक्टर जिंदा भी हैं, बोर्ड अप्रोप्रिएटली, बोर्ड में वैकेंसी भी नहीं है और डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड भी नहीं है, फिर भी अगर बोर्ड मीटिंग में कोरम नहीं बना, व्हाट शैल हैपन? अगर फिर भी नहीं कोरम बना, in that case the meeting shall adjourn to the next week, or the board can decide on which date the adjourned meeting has to be taken care of. तो board can decide कि मीटिंग कब होगी, नेक्स्ट वीक या फिर बोर्ड द्वारा जो डिसाइडेड टाइम होगा उस पे मीटिंग हो सकती है। Pranali is joining the meeting. I'm so sorry guys, I have to do it and I have to interrupt the meeting again and again. 174 सबसेक्शन 1 स्पेसिफिकली कोरम के बारे में बात करता है। अगर उतना रिक्विजिट कोरम नहीं बनता है, वी डायरेक्टली गो टू 174(4). 174(4) स्ट्रेट अवे बोल देता है कि कोरम नहीं बना, मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न नेक्स्ट वीक। या तो बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि वो बाद वाली जो मीटिंग है वो कब होगी। इसके अलावा 174(2) और 174(1), 174(4) बहुत कनेक्टेड है। इसके अलावा 174(2) और 174(3) इसके बारे में बात करते हैं। 174(2) स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करता है। 174(2) provides for what happens if in case there's a vacancy in the board. If the board is vacant because of the resignation of the director, or because maybe we have removed the director from the company, so because of resignation, because of removal of directors, or maybe because of death of the director, there's no vacancy, the director is not there, है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है, so the director is not there at all. The director is not there at all, he has resigned or we have removed him, the board is vacant, there's no possibility, हो ही नहीं सकता कि board meeting हो जाए, because board is vacant, there's no director at all, so there's no director. In that case, what shall happen? 174 subsection 2 provides, in that case, without the quorum also, 2 matters can be transacted. Number one, in the same board meeting, if the quorum is not there, one director is there or maybe 2 directors are there, but the quorum is not there, in that case the additional director can be appointed. Now naturally the additional director, if is appointed in that same meeting, the quorum will be there. तो quorum बनाने के लिए additional director can be appointed. अगर vacant board है, मैं फिर रिपीट करता हूं, रिजाइन कर गया डायरेक्टर, डायरेक्टर की डेथ हो गई है, डायरेक्टर जिंदा ही नहीं है ही नहीं, तो ऐसे केस में 174(2) provides कि अगर बोर्ड वेकेंट है, either in the same meeting
appoint an additional director 161(1) or convene a general meeting so that in the general meeting the members can appoint a director and the board will be, the composition of the board will be adequate and then future mein meetings ho paegi. 174 subsection 2, I reiterate, 174 subsection 2, vacant board है, vacant board है ही नहीं, director जिंदा ही नहीं बचा तो meeting कैसे होगी? In that case, without the quorum, two matters can be transacted. One, in the board meeting, 161(1), the additional director can be appointed, or the general meeting can be convened so that in the general meeting, by passing special resolution 152, we can appoint, by passing ordinary resolution, we can appoint a director. Further, 174(3) provides for interested directors. Interested directors, fundamentally, it is coming from the principle of conflict of interest. इच्छा शक्ति का टकराव. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ में या प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी में हम लोग इच्छा शक्ति का टकराव के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं. जब भी हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके सामने एक रिवर है, उसमें दो आंटियां डूब रही है, एक आपकी मॉम है और एक पता नहीं कौन है, आप किसको बचाओगे? द नेचुरल इंस्टिंक्ट, अरे आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ, किसको बचाओगे? द नेचुरल इंस्टिंक्टिव आंसर इज मॉम. तो यहाँ पे बेसिकली ये चॉइस थी ही नहीं, आपने डिसीजन नहीं लिया. डिसीजन किसको बोलते हैं? डिसीजन लेने का तरीका क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव्स को समझना, ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना, उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनना और फिर डिसाइड करना. द मोमेंट यहाँ पे आपकी मदर इन्वॉल्व थी, आपने कुछ नहीं सोचा, आपने बोला वी विल सेव आवर मॉम, है ना? सो हियर बेसिकली यू हैव नॉट एक्चुअली वोटेड. आपने सही मायने में डिसीजन मेकिंग नहीं की, आपका झुकाव आपकी मदर की तरफ रहा. हो सकता है ऐसा केस होता, शायद ये भी हो सकता था कि कोई बहुत बड़ी साइंटिस्ट या दुनिया में कोई ऐसा इंसान डूब रहा था जिसको अगर आप बचाते तो पूरी दुनिया बच सकती, लेकिन आपने सब सवाल नहीं किए. हो सकता है वो दूसरा आदमी जो था वो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था, लेकिन आपने कोई सवाल नहीं किया. आपका सीधा आंसर था कि वी विल सेव आवर मॉम. सो दिस आंसर, यू चोज दिस आंसर बिकॉज आपका झुकाव आपकी मदर की तरफ था. बिल्कुल उसी तरह अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी मैटर में इंटरेस्टेड है, रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट, थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर लो. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी मैटर में इंटरेस्टेड है, अगर, प्लीज अंडरस्टैंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो देयर इज अ कंपनी वेयर आई एम द डायरेक्टर. हमारी कंपनी एक सीमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है और वो सीमेंट कंपनी में मेरी वाइफ डायरेक्टर है. अब हम एक बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड करने वाले हैं कि सीमेंट किससे खरीदना, और एक हिंदुस्तान की लीडिंग सीमेंट कंपनी में मेरी वाइफ डायरेक्टर है. बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेना है कि किससे सीमेंट खरीदें, वो कंपनी जहां मेरी वाइफ डायरेक्टर है, कोई दूसरी कंपनी. नाउ नेचुरली आई एम पार्टी हियर. पूजा म्यूट, अनम्यूट, पूजा म्यूट कर लो. नेचुरली मेरी वाइफ जिस कंपनी में डायरेक्टर होगी, मेरा इंक्लिनेशन उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए होगा. नेचुरली दो सीमेंट कंपनीज है, एक सीमेंट कंपनी में मेरी वाइफ डायरेक्टर है, दूसरी सीमेंट कंपनी कोई रैंडम कॉम्पीटिंग सीमेंट कंपनी हो सकती है. Naturally what I'll do is, what is more important at the end of the day, in a lighter vein, on a lighter note, boardroom or bedroom, what is more important? घर तो जाना है ना मुझे, खाना तो खाना है ना, जिंदा तो रहना है, खुश तो रहना लाइफ में, तो मैं मेरी बीवी वाली कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा. So if I do that, I may have avoided a good option. I may have, मैंने सिर्फ इसलिए एक्ट कर लिया because my wife was director in that cement company. तो ऐसा ना हो, इसीलिए 174(3) एग्जिस्ट करता है. 174(3) स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स कि अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, दैट इज टू से अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जो इंटरेस्टेड है कोई रेजोल्यूशन में, तो दैट डायरेक्टर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग और इन दैट पर्टिकुलर मैटर वेयर ही इज इंटरेस्टेड. Neither he can exercise his voting power, neither he can discuss that matter. तो participation ही allowed नहीं है. This has happened specifically because of Satyam case 2008. सत्यम जो केस हुआ,
वेरी इंडियन। पूजा वैष्णव प्लीज आप म्यूट करो ना, आपका आवाज आ रहा है बीच बीच में, सॉरी। तो सत्यम 2008 में जो डिबेकल हुआ, उसमें हुआ क्या था, this person Ramalingam Raju was trying to merge Satyam with Metas. Metas जो है MAYTAS, ये बिल्कुल सत्यम का मिरर इमेज दिखता है। तो फंडामेंटली रामालिंगम राजू जो है वो अपने बेटे की कंपनी को सत्यम के साथ इसलिए मर्ज करना चाहता था ताकि वो पूरा स्कैम कवर हो सके। तो वो पूरा स्कैम कवर करने के लिए फंडामेंटली वो ये मर्जर करना चाहता था। और उसी बोर्ड मीटिंग में द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वर नॉट गिवन नोटिसेस। इतनी बड़ी बड़ी मर्जर्स की स्कीम बोर्ड मीटिंग के वक्त, बोर्ड मीटिंग के 1 घंटा पहले डायरेक्टर्स को दी गई थी कि जल्दी जल्दी पढ़ो, मैटर पास करो। सो ये जो केस हुआ उसके बाद 174(3) जो है उसमें ये प्रावधान भी बने हैं, 184 से भी कनेक्टेड है ये प्रावधान बने कि जो इंटरेस्टेड है ना वो वोट कर सकता है ना वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। इट इज आफ्टर सत्यम दैट दिस रूल हैज बिकम मैंडेटरी कि अब पार्टिसिपेशन मतलब डिस्कशन में भी आप हिस्सा नहीं ले सकते, बिकॉज यू हैव पावर टू इन्फ्लुएंस। कोई अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर अच्छी पोजीशन वाला है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो वो पूरी मीटिंग को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकता है। दैट इज द रीजन इवन पार्टिसिपेटिंग इज नॉट अलाउड। नाउ let's talk about 175. Guys, I hope you are understanding few things. I hope I'm not going very, बहुत स्पीड से भी नहीं जा रहा हूं, मैंने ठीक ठाक स्पीड रखी हुई है, बट हाँ एक स्पेसिफिक स्पीड को फॉलो करना पड़ेगा। वी कैन टेक लॉट ऑफ ब्रेक्स, हम लोग ब्रेक्स लेंगे, बट एक स्पेसिफिक स्पीड से जाना जरूरी है, नहीं तो हमारा टास्क नहीं होगा। और अगेन एंड अगेन वी कैन मीट, हम लोग बार बार भी मिलेंगे, बट हाँ एक स्पीड से हम लोग चलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होता तो बार बार ज्वाइन नहीं करना पड़ता। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट 175. 175 specifically So, provide. Yeah. Yes. I Yes. have one doubt. Who has the doubt? Name? Saloni Shukla. Shukla ji, please let me just complete this particular portion. ये वाला portion complete हो जाएगा ना, I'll ask you to ask doubts. Don't worry. But Sorry, sir. let me just complete this portion. Otherwise, if individually I have told you before, अगर individually अगर अभी अपन लोग एक एक डाउट लें, and imagine if 20 people come up with doubts, तो हमारा ये सेशन बहुत डिले हो जाएगा और जो लय बनी रहेगी, वो जो लय बननी चाहिए वो बन नहीं पाएगी। I will be there even at the end of the session. I will be staying back for half an hour more. If you have any doubts, I am here, happy to help. But during the session, please let me just go in the speed. Sorry, मैं आपको opportunity दूंगा. Don't worry. Don't worry. sorry, sir. Sorry. Switch on your camera also, Saloni. I can't see you guys. Please understand. Please understand. आप लोग कैमरा क्यों नहीं ऑन करते? ओ क्लास. Saloni, switch on your camera. I will have to remove you people. Switch on your camera. Thank you, Saloni. Tanisha, Pranay, switch on the camera, brother. भाई लोग कैमरा ऑन कर दो प्लीज। भाई लोग, बहन लोग, भाभी लोग, आई डोंट इवन नो यू गाइज वेल। तुम क्लास में होते तो मुझे पता भी होता कि कौन ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रणय भाई, उसे डरा रहा है यार तू, वो वाला तूने इमेज डाल के रखा हुआ है। Thank you, thank you. I can see you all now. Please switch on, keep the camera switch on. Again I repeat, हम लोग इसीलिए मिले हैं कि थोड़ा इंटरेक्शन भी हो यार। मतलब मैंने तुमको देखा नहीं है, मैं अभी तक सिर्फ इमेजिन करके चलता था कि ये लोग यहाँ बैठते होंगे। मतलब यूजुअली आई कुड इमेजिन कि लास्ट में जो मतलब होता है ना यार, लास्ट में लौंडों का एक ग्रुप बैठता है जो मतलब होता है यार। मतलब लाइव क्लास होती है तो उसमें ये सब हो रहा होता। फर्स्ट डे में भी वी ऑल्सो मिस फ्यू थिंग्स यार। मतलब पहले कुछ दिन में तो क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब फर्स्ट फ्यू डेज आई वेरी केयरफुली ऑब्जर्व, तो कुछ कुछ बच्चे जो सामने बैठे हुए होते हैं, फर्स्ट उनको क्लास से, टीचर वीचर से कोई मतलब नहीं होता। वो बेसिकली से पलटते हैं, क्राउड वाउड देखते हैं, एक दो उनको अगर जम गए, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, द क्लास इज लुकिंग गुड, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड इवन गर्ल्स बहुत बार तो बच्चियां आती है, बोलती है सर सुनो ना एक प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही होगी। फिर वो बोलते हैं सर कोई बंदा ही नहीं है क्लास में। मैंने कहा यार ये क्या बात बता रहे तुम मुझे। सो all these things keep on happening in the class and I do miss that. तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ मिल रहे हैं तो humble request, please switch on, keep the camera switch on. मुझे कैमराज ऑन चाहिए रहेंगे। सॉरी, चलते हैं आगे। 175 provides for the passing of resolution by circulation.
फ्रैंकली स्पीकिंग, एज अ स्टूडेंट मैंने ये प्रोविजन पढ़ा तक नहीं था, मुझे एग्जीक्यूटिव में नहीं पता था ये। जब हम लोग इंटर्नशिप ज्वाइन किए, और इंटर्नशिप कंपनी में कभी कभी करना इसलिए बहुत हेल्पफुल भी होता है, और अच्छा मेंटोर होना भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई एक्चुअली अंडरस्टूड इन द ड्यूरिंग द इंटर्नशिप. अब there are a lot of matters which are not of that importance. For example, suppose एक कंपनी को सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करना है, it becomes important कि अगर बैंक अकाउंट भी ओपन करना है तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन तो लगता ही है. So what happens is, अब सिर्फ वो बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए should I call the पूरा बोर्ड मीटिंग? तो कभी कभी some matters और नॉट ऑफ दैट इंपॉर्टेंस कि हम लोग पूरी एक बोर्ड मीटिंग बुलाएं, और पूरी एक बोर्ड मीटिंग बुला के हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के लिए, वो भी ऐसा मैटर है जिसमें बहुत ज्यादा डेलिब्रेशंस एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है. तो देयर आर लॉट ऑफ मैटर्स जिसके लिए पूरा का पूरा बोर्ड मीटिंग बुलाना कई बार, नंबर वन, इट्स नॉट अ प्रेफरेबल ऑप्शन. नंबर टू, देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस व्हेन कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग इज नॉट फीजिबल. कभी कभी कुछ मैटर्स हमें बहुत अर्जेंटली ट्रांजैक्ट करने होते हैं, उस मैटर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग पूरी एक बोर्ड मीटिंग बुला के कोई ट्रांजैक्शन करें. तो कभी कभी कुछ मैटर्स को अर्जेंसी की वजह से, या कुछ कुछ मैटर्स को फीजिबिलिटी की वजह से हम लोग रेजोल्यूशन को सर्कुलेशन से पास करते हैं. दैट इज टू से हम लोग एक्चुअल में बोर्ड मीटिंग नहीं लेते, ना फिजिकल ना ऑडियो वीडियो वाली मीटिंग. तो कभी कभी विदाउट टेकिंग द बोर्ड मीटिंग वी कैन पास अ रेजोल्यूशन. Now how does that happen? So what actually happens in practice is, whatever resolution you want to propose and you want it to get passed, आप उस particular draft resolution को prepare करते हो. Along with that draft resolution, अगर कोई उससे related information है, उससे related there is certain information which probably can help the directors decide the matter, हम लोग एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रिपेयर करके सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करते हैं. नाउ इन आवर कंपनी ऑल द डायरेक्टर्स बारिंग वन, सारे के सारे डायरेक्टर्स नागपुर के थे, सिर्फ एक डायरेक्टर को छोड़ के. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, जस्ट अ मिनट, व्हाट वी यूज्ड टू बाय हैंड हम लोग नोटिस भेजते थे. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई नीड टू अलाउ टू पीपल, आई गेट pissed off by this, but मैं कुछ नहीं कर सकता, छोटे बच्चे हैं तो. ओके, एनीवेज अभी स्क्रीन 2 मिनट के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो या सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे सारे के सारे डायरेक्टर्स नागपुर में थे. तो हम लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ का कोई प्यून या कोई क्लर्क होता था, उसको हम लोग बाय हैंड डिलीवरी डायरेक्टर को नोटिस पहुंचाने को बोलते थे. डायरेक्टर हु यूज्ड टू बी इन मुंबई, उनको हम लोग उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल करते थे, एंड ही कैन देन कंसिडर थ्रू द मेल. इन रियल लाइफ द प्रैक्टिस वाज, हम लोग हैंड रिटन नोटिस भी बाय हैंड डिलीवरी हम लोग नोटिस भी भेजते थे. हमारी जो मेंटोर थी, हमारी जो मैम होती थी, राधिका अग्रवाल मैम, वो स्पेसिफिकली डायरेक्टर्स को रिमाइंडर कॉल भी करती थी, और फिर एसएमएस भी करती थी. उस टाइम पे व्हाट्सएप उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था 2011 में, तो हम लोग मल्टीपल बार रिमाइंडर मारते थे डायरेक्टर्स को. तो व्हाट कैन हैपन इज, वी कैन जस्ट पास वी कैन जस्ट ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन. एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना लो, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के आप सारे के सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट कर दो. वंस वो सारे के सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट हो गया, eventually they can decide by registered email id, they can give their consent. वो लोग अपना कंसेंट वहीं से दे सकते हैं. ओके, सो दे कैन एक्चुअली गिव देयर कंसेंट थ्रू दैट ईमेल आईडी. तो वो लोग अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही कंसेंट दे सकते हैं. However, there are certain issues. However, there are certain problems with this. Now, as I had given example, now imagine, okay, we have, for example, we have Nidhi. अभी निधि
निधि का एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो गया। एग्जीक्यूटिव कंप्लीट होने के बाद निधि वेंट टू मुंबई। निधि मुंबई में गई, निधि शॉपिंग कर रही थी। निधि को एक कोई टी शर्ट पसंद आ गई स्ट्रीट में। उसने अपनी मॉम को कॉल किया कि मॉम टी शर्ट ले लूं। उसकी मॉम ने बोला ठीक है गो अहेड। फिर निधि आगे गई, उसको एक अच्छे बहुत सेक्सी स्नीकर्स मिले तो उसने बोला ये शूज ले लूं। उसकी मॉम ने फोन पे बोल दिया ओके। इन द नेक्स्ट स्क्वायर निधि को एक बंदा बहुत पसंद आ गया, एकदम मस्कुलर बंदा था, स्पाइक्स वाइक्स। तो निधि ने कॉल किया कि मॉम ये लड़का पसंद आ रहा है, अभी यहीं शादी कर लेती हूँ उस समय। सो naturally this is not a matter which can be decided over phone without deliberations, without discussions. So what happens is 175 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कुछ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि कोई मैटर्स स्पेसिफिकली बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस हो तो फिर वो बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस होंगे। ओके, सो ऐसे केसेस में वो मैटर्स को फिर बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस करना पड़ेगा। Exactly what is the number? Exactly the number is 1/3. अगर 1/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स बोल दें, 1/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स बोल दें, तो ऐसे केस में आपको फिर वो मैटर को बोर्ड मीटिंग में ही लेना पड़ेगा। तो सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर लिटिल मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सम डायरेक्टर्स। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें ज्यादा डेलिब्रेशंस, ज्यादा डिस्कशंस, फिजिकल मीटिंग का जरूरत है तो वो लोग बोल सकते हैं। तो 1/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स ने बोला कि सर्टेन मैटर हैज टू बी डिसाइडेड इन द मीटिंग इटसेल्फ, इन दैट केस फिर वो मीटिंग में ही होगा। फर्दर, very 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 important that certain transactions, certain business items cannot be decided by the board meeting. कुछ business items board meeting से decide by circulation decide नहीं हो सकते, वो board meeting में ही करने पड़ते हैं। So specifically which are the items जो board meeting में ही करने पड़ते हैं? Number one, you will have to see in the Companies Act 2013 कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि the matter has to be transacted in the meeting. You have to be very carefully read the provisions. तो जैसे 179 हम लोग पढ़ते हैं, तो 179 की ओपनिंग लाइन जो है, 179(3) की जो ओपनिंग लाइन है उसमें लिखा हुआ है the following powers should be exercised by the board in the meeting itself. तो वे स्पेसिफिकली इन कंपनीज एक्ट ऐसा लिखा हुआ है कि इन द मीटिंग certain resolution should be passed. फिर ऐसे केस में स्पेसिफिकली मीटिंग में ही वो रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा आपको। फर्दर, सो ऐसे 26 मैटर्स हैं, उनमें से मेजॉरिटी मैटर्स 179 के हैं। तो इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू रिमेंबर वेरी बहुत डिलिजेंटली आपने 173(3) के मैटर्स पढ़े हैं तो आपको 175 में उसकी हेल्प होती है। एनीवे, वी आर गोइंग स्लो, थोड़ा फास्ट जाते हैं। चलो 176 की बात करते हैं। अगर किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल इफ सम डायरेक्टर वाज अ डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर, फिर भी अगर कंपनी ने उसको अपॉइंट कर लिया, ऐसे केस में अगर वो डायरेक्टर किसी पर्टिकुलर डिसीजन का पार्ट था तो क्या वो डिसीजन की वैलिडिटी होगी? द आंसर इज इफ द कंपनी हैज नो नोटिस ऑफ दैट डिफेक्ट, यस दैट डिसीजन विल बी वैलिड, वो इनवैलिड नहीं होगा। फर्दर, मान लो कोई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट्स थे एंड कंपनी गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, इट कम्स टू द नोटिस ऑफ द कंपनी दैट यस द डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट वाज डिफेक्टिव। अगर इसके बाद कोई डिसीजन डायरेक्टर ने पास किया, इस डायरेक्टर ने पास किया जिसकी अपॉइंटमेंट्स में डिफेक्ट्स थे, इन दैट केस द वैलिडिटी विल बी इन क्वेश्चन एंड इट विल नॉट बी वैलिड। Further, now let's come to the important part. Let's talk about 177, 178(1), 178(5). फंडामेंटली 177, 178(1), 178(5) ये तीनों ही सब कमिटी ऑफ द बोर्ड्स के बारे में। I've told you before, I'm telling you again. Companies like TCS, companies like Reliance Industries, you think of the scale. TCS साल में 35,000 करोड़ रुपए कमाती है, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू करती है, मोर देन 50 कंट्रीज में ऑपरेशन है। रिलायंस इंडस्ट्री, नागपुर जितना शहर है उतना जामनगर में उनका सिर्फ प्रोडक्शन चलता है, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्टिलरी फैक्ट्री है, सबसे बड़ा रिफाइनरी उनका है, हिंदुस्तान में लार्जेस्ट लैंड बैंक रिटेल के ऑपरेशन में उनके पास है, सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स वो लोग हैं, हिंदुस्तान के 19 मीडिया चैनल्स वो लोग कंट्रोल करते हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अब इमेजिन द स्केल, 6 लाख करोड़ रुपए, जियो इन्फोकॉम को हटा के बोल रहा हूं, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज
स्टैंडअलोन, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं, स्टैंडअलोन रिलायंस इंडस्ट्रीज 6 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती है, 50,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट करती है. इमेजिन द स्केल ऑफ द कंपनी. डू यू थिंक कि वहां चोरी चकारी नहीं होती होगी? डू यू थिंक कि वहां पे स्क्रूटिनी नहीं करना पड़ेगा? डू यू थिंक कि वहां पे चेक्स नहीं रखने पड़ेंगे? डू यू थिंक अभी डोमिनोज में डेटा लीक हो गया है, एयर इंडिया में डेटा लीक हो गया है. इमेजिन इन द स्केल, विप्रो में एम्प्लॉइज के अकाउंट्स हैक हो गए थे. विप्रो, to be precise, Wipro is a company which is into software maintenance. So imagine the size of the companies. We are becoming company secretaries. I don't think कि आप में से कोई प्राइवेट कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा. आप में से कोई ऐसा नहीं सोचता होगा कि हम कोई छोटी मोटी कंपनी का काम करके खत्म कर देंगे. अगर आप CS कर रहे हो, you probably will have dreams, you probably will have aspirations to work in companies like Reliance Industries, companies like Infosys, companies like NTPC, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Yes Bank, good companies, Bajaj Finance. आप ये कंपनीज की स्केल की बात करो. बजाज फाइनेंस 1.5 लाख करोड़ रुपए का टोटल असेट साइज है, मतलब लोन जो टोटल बांटा हुआ है वो 1.5 लाख करोड़ का बांटा हुआ है. SBI ने 45 लाख करोड़ का लोन बांटा हुआ है. अब ये स्केल वाली कंपनीज में आपको नहीं लगता कि कुछ चेक्स, कुछ एडिक्वेट बैलेंसेस होना जरूरी है? हाँ, 2 लाख शेयर होल्डर्स ने मिला के 10 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया या 12 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, या बैंक्स में तो RBI ऑल्सो कम्स इन. दैट डज नॉट मीन कि हम लोग कुछ प्रोसेसेस ना बनाएं जहां हम लोग कुछ चेक्स ना रखें. दैट इज द रीजन सब कमिटीज ऑफ द बोर्ड आर constituted. 177 to be more precise provides for the audit committee. 177 audit committee की बात करता है और ये टॉपिक बड़ा मैच्योरिटी डिमांड करता है. इमेजिन आप अपने 25 साल का हार्ड अर्न मनी, आप 25 साल के लिए जॉब किया, आपने 25 साल में जो भी कमाया वो पूरी 25 साल की कमाई आपने इन्फोसिस या सत्यम जैसी कंपनी में लगा दी. इमेजिन अगर वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईमानदार नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, धांधली कर दी उन्होंने पैसे से. The moment news will come out, the stocks will bleed. खून बह जाएगा मार्केट में. आप इमेजिन करो, आपने अपनी पूरी लाइफ की 2 करोड़ 3 करोड़ जितना हमने पूरे लाइफ में कमाया था, अगर आपने इस कंपनी में लगाया था और ये कंपनी में स्कैम हो गया, ब्लड शेड हो जाएगा, खून बह जाएगा शेयर का. इफ दिस हैपेंस टू यू, तुम छोड़ो, तुम्हारा पूरा खानदान दोबारा कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा. बिकॉज ट्रस्ट एंड वर्जिनिटी, एज आई ऑलवेज से, once gone forever, never comes back. Forget about other things, focus on the trust. So it is important to make sure that company which has got more stakeholders, larger shareholders base, ऐसी कंपनीज में स्क्रूटिनी थोड़ी टाइट हो, और इसीलिए ही ये कमिटीज बनाई जाती है. 177 ऑडिट कमिटीज की अगर हम बात करें तो प्रिसाइसली ऑडिट कमिटी में 3 चीजें हम लोग पढ़ते हैं. नंबर 1, the applicability. Number 2, the composition of audit committee. Number 3, the terms of reference of the audit committee. 3 चीजें हम लोगों को बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली फोकस करके पढ़नी होती है. I have reiterated in the video recordings also. 177, सबसे पहले ये सेक्शन एप्लीकेबल कहाँ है? तो हमने देखो छोटे एंटरप्रेन्योर्स का भी ध्यान रखा है. हम नहीं चाहते कि जो बेचारा भी धंधा शुरू कर रहा है उसको ऑडिट कमेटी बनाने को हम बोल दें. सो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का कंपनी लॉ सबको ही गलत मानता है. ऑफ कोर्स ये भी एक धारणा है हिंदुस्तान में कि हर बिजनेस करने वाला बेईमान होता है, इसीलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट कानून भी है. बट फिर भी अगर आप देखोगे, हमने बहुत छोटी कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनाने को नहीं बोला है. 177, the applicability of the section. All the listed entities, in fact company भी नहीं, listed entity is the word that is usually used now. तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज के शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ऐसी सारी कंपनियों को ऑडिट कमेटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. सेकेंडली, द पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, एग्रीगेट बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा, ऐसे केस में यू विल हैव टू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑडिट कमेटी. नाउ what shall be the composition? There shall be minimum 3 members, जिसमें से मेजॉरिटी जो डायरेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसलिए जरूरी है
क्योंकि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग धांधली कर रहे हैं, जो लोग मिसफिजेंस दे आर अप्लाइंग फंड्स एल्सवेयर, निवेशक का पैसा ले लेते हैं और अपनी बेटी की शादी में यूज कर रहे हैं. सो इसीलिए कंपोजिशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेजॉरिटी में है. तो अगर ऑडिट कमिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं होंगे तो यहां पे भी तुम प्रमोटर डायरेक्टर को बिठा दोगे तो हु विल चेक कि वेदर एवरीथिंग इज फाइन और नॉट. That is the reason in the composition majority of the members in audit committee are independent directors or have to be independent directors. There is no qualifications specified for these members of the audit committee, like chartered accountant होना जरूरी नहीं है, CFA होना जरूरी नहीं है, CS होना जरूरी नहीं है, advocate होना जरूरी नहीं है, MCOM होना जरूरी नहीं है. The requisite is the members must have ability to read and understand the financial statements, that is to say the profit and loss account, balance sheets, cash flow statements, schedules, etc., etc. What are the terms of reference? There are 8 matters specifically prescribed. Which are those 8 matters? Now please focus, because abhi part A में audit वाला chapter आएगा, वहां फिर से ये important हो जाएगा. Section 177 terms of reference का मतलब होता है audit committee के functions क्या होंगे. Number 1, recommendation about the appointment of auditor, recommendation on the remuneration of auditor, recommendation on the terms of appointment of the auditor. In the big seminars, in the big seminars, usually पता है topics क्या होते हैं? The themes are, मतलब बड़े बड़े लोग आएंगे, हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज से आ रहे होंगे, एकदम लेजेंडरी फैकल्टीज आ रही होगी और वैसे डायलॉग मारेंगे, हम ऑडिटर्स तो अपॉइंट करते हैं, बट हु ऑडिट द ऑडिटर्स. तो ऐसे बड़े फंडे चल रहे होते हैं कि ऑडिटर तो कंपनी की बैलेंस शीट को ऑडिट करेंगे, लेकिन हु विल ऑडिट द ऑडिटर्स, हु विल इंश्योर दैट द ऑडिटर्स आर एडिक्वेटली परफॉर्मिंग, हु विल इंश्योर दैट द ऑडिटर्स डोंट हैव हैंड इन ग्लोव रिलेशनशिप. दिस एक्सप्रेशन हैंड इन ग्लोव रिलेशनशिप इज ऑफन यूज्ड. हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है अगर कंपनी हाथ है और ऑडिटर ग्लोव है, ऐसा नहीं होना चाहिए. द ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट सो दैट इंडिपेंडेंटली ऑडिटर ऑपरेट कर पा रहा है. अदरवाइज क्या होगा, मतलब इंडिया है, 7 दिन में रिश्तेदारी हो जाती है, 2 मिनट किसी से बात कर लो, मतलब आदमी को मैनेजर से पपलू बनने में टाइम नहीं लगता. सो दैट शुड नॉट हैपन. द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर शुड बी इंश्योर्ड. So who shall ensure that the auditor is independent and is devoid of all emotions and devoid of all relationships with the directors, the promoters, etc. So that is the reason we have audit committee, to ensure that the auditor is independent. Few years back in Nagpur, one of the company, which is Ispat Alloys, I should not be taking names, but there was a company, the auditors were given 3 crores as audit fees. Company was a very small company, 3 crores. Forget about this. There's a very big, one of the big fours. हिंदुस्तान में 4, आपको पता होगा 4 big fours है, audit firms है. One of the big fours, in their own balance sheet, they reported 200 crores of sundry income. 200 करोड़ की sundry income दिखाया उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में. पता है क्या बोलते हैं? हमको पता नहीं है हमारी इनकम कहां से हुई है. छोटी छोटी इनकम बहुत जगह से हुई, तो इसका कोई हिसाब नहीं है. इमेजिन द बिगेस्ट ऑडिट फर्म इन इंडिया, वो अपनी बैलेंस शीट में बोल रही है कि हमारी 200 करोड़ सन्ड्री इनकम है. So this goes on. Thankfully, post 2013 things have become better. 2013 के बाद में ऑडिटर्स बहुत स्ट्रिक्ट है. इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स भी बताते हैं कि आजकल ऑडिटर्स बहुत स्ट्रिंजेंट है, तो विच इज गुड. कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट्स के लिए, कैपिटल मार्केट्स के लिए कंपनीज जब पैसा निवेशकों से रेस करने जाती है, तो वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों का विश्वास हो कंपनीज में, लोगों का विश्वास हो स्टॉक मार्केट्स पे. Because once this confidence is shattered, कोई निवेशक दोबारा पैसा नहीं लगाएगा इक्विटी शेयर्स में. अगर इक्विटी शेयर्स में पैसा नहीं लगाएंगे लोग, कंपनियों को वापस कर्जा लेना पड़ेगा. कर्जा लेंगे, बैलेंस शीट कर्जे के नीचे दब जाएगी, बैलेंस शीट में डेट का प्रेशर आ जाएगा. इसीलिए ऑडिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑडिट कमिटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस, नंबर 1, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन और टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑडिटर के रिकमेंड करना. सेकेंडली, ensuring that the auditor is independent, ensuring that उसका परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रहा होगा. बिकॉज ऑडिट जो है ना बहुत बेहतरीन चीज है. मतलब आप सेक्रेटरियल ऑडिटर बनोगे तो सेक्रेटरियल ऑडिट में पता क्या होता है, जो MR5 फॉर्मेट होता है ना SAR रिपोर्ट का, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें यू आर साइनिंग, यू आर सर्टिफाइंग दैट ऑल द लॉज रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद. कैन यू साइन? अगर आप लार्सन एंड टुब्रो का सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो, क्या आप साइन कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो कि सारे लॉ फॉलो हुए?
एक एक चीज एग्जॉस्टिव ऑडिट नहीं हो सकता, सैंपलिंग करनी पड़ती है। तो वो जो ऑडिट का प्रोसीजर ऑडिटर फॉलो कर रहा है वो भी तो इंपॉर्टेंट है, क्या प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं, बिकॉज अगर प्रोसीजर बराबर नहीं है, प्रोसेस बराबर नहीं है, तो ऑडिट ठीक से होगा नहीं। Ensuring that the performance of auditor is all right. So audit committee will review and monitor the performance of the auditor. Further, examination of financial reports. Now financial reports, to be थोड़ा ना straight बात करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या होती है? कागज के टुकड़े पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, कागज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कागज के टुकड़े में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। धांधली हो गई तो, गड़बड़ हो गई तो, सो इट इज द ऑडिट कमिटी विच शैल इंश्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एडिक्वेटली बनाई जा रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन का भी काम ऑडिट कमिटी को दिया हुआ है। फर्दर, अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, प्रोफेशनल में आओगे, जितने भी स्कैम्स अब तक हुए हैं, जितने भी गलत धंधे अब तक हुए हैं, वो सबकी जड़ें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में छुपी हुई होती है मोस्टली। अक्सर कंपनी में जो फ्रॉड्स है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पकड़ में आते हैं। तो जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगे, सारे के सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटिनाइज करने का काम भी ऑडिट कमेटी का होगा। फर्दर, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की स्क्रूटिनी, कंपनी किसको लोन दे रही है, कहां निवेश कर रही है, इसकी स्क्रूटिनी भी ऑडिट कमेटी करेगी, ये ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी होगी। फर्दर, कभी कभी जहां जरूरत पड़े वहां पे कंपनी के एसेट्स और अंडरटेकिंग की वैल्यूएशन करने का भी जिम्मेदारी ऑडिट कमेटी पे होगा। फर्दर इवैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग एंड एसेट्स हमने बोल दिया है। इसके अलावा जो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट है, इंश्योरिंग दैट देयर आर एडिक्वेट कंट्रोल्स, तो आपको इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ये भी जिम्मेदारी ऑडिट कमेटी की होगी। फर्दर, whenever the company is raising money through IPO, through public issues, ensuring that money is being used for the object that was specified in the prospectus. तो आपने पैसा रेज किया है, प्रोस्पेक्टस में आप स्पेसिफिक आपने ऑब्जेक्ट बताया था, आप उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से पैसा रेज कर यूज कर रहे हो या नहीं, ये मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी ऑडिट कमेटी की होगी। So fundamentally, the terms of reference, if you'll check the terms of reference, you'll understand that monitoring that end use is also the duty of audit committee. Though under the ICDR regulation SEBI के जब आप बड़े होकर regulations पढ़ोगे मॉड्यूल 2 में, तो SEBI के नियमों में भी एक मॉनिटरिंग का स्पेसिफिक प्रावधान है, तो end use मॉनिटर किया जाता है। I remember very fondly few years back there's a company Vaswani Industries Limited from Raipur. It was penalized by SEBI. आईपीओ में जो पैसा रेज किया गया था वो किसी दूसरे मकसद के लिए यूज किया गया था, तो इट वाज पेनलाइज्ड बाय सेबी, जस्ट टू टेल यू। तो दिस वाज समथिंग दैट वी रिमेंबर, जब हम स्टूडेंट्स होते थे तब ये हुआ था। फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट 178, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सेक्शंस। मुझे लगता है कि ये काफी रेलेवेंट सेक्शन है ना। 178 की बात करते हैं। सॉरी, 178 की बात करते हैं। 178 provides for the nomination and remuneration committee. Good things, post 2009, post 2010, things have really changed in India. Thanks to नारायण मूर्ति कमिटी, ऐसी बहुत सारी कमिटीज बैठी थी जिनमें काफी सारे रिकमेंडेशंस आए, जिसके बाद ये कंपनीज एक्ट में नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स आए। नाउ एनआरसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. Nomination Remuneration Committee, in fact, I believe this is one of the most important concepts. अभी कुछ दिनों पहले की बात है, गोदरेज के शेयर्स बढ़े थे। आपको मालूम है गोदरेज के शेयर्स क्यों बढ़े थे? The only reason गोदरेज के शेयर्स बढ़े is because वहां पे पूरी मैनेजमेंट नहीं आई, जो डायरेक्टर्स थे वो पूरे बदले गए। गोदरेज ग्रुप ने फैसला लिया कि कंपनी हम प्रोफेशनल्स के हाथ में देंगे। शेयर होल्डर्स ने 21 तोपों की सलामी दी, स्टॉक 20% ऊपर था, जस्ट बिकॉज द प्रोफेशनल मैनेजमेंट केम इन। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि हिंदुस्तान की कंपनियों में ये कुर्सी वाला किस्सा ना हो जाए यार। प्रमोटर्स छोड़ते ही नहीं यार कंपनी को। द प्रमोटर्स वांट टू डाई ऑन जॉब। प्रमोटर्स मरते तक अपना, दे आर नॉट पासिंग द बैटन। क्रिकेट से हम थोड़ी क्यूज ले सकते हैं, हम जैसे MS धोनी है, सही समय पे विराट कोहली को टेस्ट में उन्होंने कैप्टन बना दिया।
सही समय पे 50-50 ओवर में भी वो कैप्टनशिप पास कर दी और अच्छे से रिटायर होने के पहले एकदम स्मूथ ट्रांजिट के साथ खत्म हुई चीजें। कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर कोई डायरेक्टर सीनियर हो गया है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है सीनियर हो गया है, उसको पता है कि 60-65 का है, दे शुड बाय देमसेल्व्स दे शुड पास द बैटन। जो न्यू प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो सक्षम हैं, आप उनको भागदौड़ उनके हाथ में दो। कंपनी की फ्यूचर में जो फ्यूचर की लीडरशिप पाइपलाइन है उसको तैयार करो। तो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी के 2 स्पेसिफिक टाइप के काम होते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन एप्लीकेबिलिटी एग्जैक्टली सेम एज ऑडिट कमिटी। कंपोजिशन में यहाँ पे मिनिमम 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। द रीजन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड हियर इज बिकॉज नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी का एक काम यह है कि वो डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन डिसाइड कर रहे होते हैं। अब जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, अगर उन लोगों की रेम्युनरेशन ही डिसाइड करनी है तो वो खुद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैसे करेंगे? दैट इज द रीजन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ 3 या 3 से ज्यादा होना जरूरी है। अगेन मोर देन 50 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। काम क्या होगा इस नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी का? देखो यार, आदमी बड़ा हो आदमी छोटा हो, इवैल्यूएशन सबका होना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इवैल्यूएशन करना, उसकी पॉलिसी बनाना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब 2 स्पेसिफिक काम है। एक जो है वो ये है कि यार पहले तो रेम्यूनरेशन आप अच्छी डिसाइड करो। द नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी शुड इंश्योर दैट नंबर 1 रेम्यूनरेशन इज एडिक्वेट, सफिशिएंट टू अट्रैक्ट गुड टैलेंट, रिटेन गुड टैलेंट एंड मोटिवेट द टैलेंट। तो अच्छे लोग हमारी कंपनी में जुड़े, अच्छे लोग हमारी कंपनी में अगर अच्छा काम करें तो उनकी रेम्यूनरेशन एडिक्वेट हो ताकि वो कंपनी में बने भी रहे। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे ना हम बहुत जजमेंटल है। मैं आपको बोलूंगा अभी सुंदर पिचाई की सैलरी 120 करोड़ है या 200 करोड़ है, आप लोग बोलोगे इतना जरूरत नहीं है, कैपिटलिज्म है, क्या गलत है इसमें? जो आदमी 1000 करोड़ का धंधा कंपनी को करके दे रहा है, अगर वो 120 करोड़ ले रहा है तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? आप इमेजिन करो गूगल जैसी कंपनी की स्केल को, उसकी इंपॉर्टेंस को, टू अ ग्रेट एक्सटेंट उसको रेम्यूनरेशन देना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है और वो गलत धंधा करेगा ही नहीं। उसको इतना आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो पहली बात तो वो कोई गलत या मिसरीजंस नहीं करेगा, कोई डेटा लीक्स नहीं होंगे एक्सेट्रा। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट नंबर 1 अच्छी रेम्यूनरेशन देना खराब बात नहीं है, लेकिन रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस के बीच में रिलेशनशिप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेम्यूनरेशन बहुत ज्यादा है बट परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। तो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी शुड इंश्योर दैट रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस का एक लिंक है। 2014 में इन्फोसिस में विशाल सिक्का नाम का एक व्यक्ति था जिसको इन्फोसिस ने 2012 में अपॉइंट किया था 30 करोड़ की सैलरी पे। सैप का डायरेक्टर हुआ करता था, वो कैनेडियन बंदा है, कैनेडियन पंजाबी है वो, विशाल सिक्का। उसको इन्फोसिस 2011 में लेके आई इन्फोसिस अपने पास कि तू संभाल भागदौड़, सीईओ बनाया, 30 करोड़ की सैलरी रखी। 2 साल बाद इन्फोसिस के जो फाउंडर्स थे उन्होंने बोला कि सब ठीक है लेकिन आपकी जो रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस के बेंचमार्क सेट किए गए थे, आप वो परफॉर्मेंस बेंचमार्क को नहीं मीट कर पाए। वादा ये था कि $2 बिलियन रीच करोगे आप, आपने 30 करोड़ तो लिए, $2 बिलियन रीच नहीं किया, प्लीज स्टेप डाउन। इवेंचुअली विशाल सिक्का ने कंपनी छोड़ी, नारायण मूर्ति वापस आया 1 साल के लिए एंड इवेंचुअली फिर आगे स्मूथली फिर आगे काम हुआ। तो परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स अगर रखे गए किसी रेम्यूनरेशन के साथ तो वो मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परफॉर्मेंस बेंचमार्क मैच ही नहीं हो रहे और तुम 20-20 करोड़ रुपए उठा रहे हो। सो दैट शुड नॉट हैपन। thirdly, I did deliberate on this. कोई भी रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर आप सिर्फ फिक्स सैलरी दोगे किसी को, वो तो बैठ जाएगा, एंजॉय करेगा लाइफ। आप बोल रहे हो कि 30 करोड़ तुम्हारी सैलरी है तो डायरेक्टर को कोई टेंशन ही नहीं लाइफ में। That is the reason the remuneration should be adequate mixture of fixed component of remuneration and the incentive based. So here stock options could be used या फिर sweat equity shares हम लोग दे सकते हैं। तो या प्रॉफिट बेस्ड कमीशन की कंपनी प्रॉफिट इतना बनाएगी तो इसके ऊपर आपका कमीशन होगा, इस तरह से इंसेंटिव हो सकता है। अगेन 2014 टाटा मोटर्स के एक डायरेक्टर के लिए रेम्यूनरेशन डिसाइड हुआ था। द शेयर होल्डर्स डिड नॉट पास द रेजोल्यूशन बिकॉज
उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर था, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक थे उन्होंने कहा ये सैलरी स्ट्रक्चर बराबर नहीं है, आप पूरा का पूरा फिक्स स्ट्रक्चर रख दिया है, पूरा का पूरा फिक्स सैलरी दे रहे हो डायरेक्टर को, ही हैज नो मोटिवेशन टू परफॉर्म। तो ये भी बात का ध्यान रखा जाता है। सेकेंडली, ये हो गई रेम्यूनरेशन से रिलेटेड 3 ड्यूटीज। इसके अलावा 4-5 चीजें जो है वो नॉमिनेशन से रिलेटेड है। मैंने गोदरेज का एग्जाम्पल दिया होगा आपको, अभी भी दिया और मैंने आपको वीडियो में भी दिया होगा। गोदरेज ग्रुप है ना, उनका एक ड्रॉप डेड प्लान है। अगर गोदरेज के सारे डायरेक्टर्स मर भी गए ना, तो इमीडिएटली पूरा का पूरा 10-12 लोगों का एक पूरा लीडरशिप टीम तैयार है, जो कि इवेंचुअली तुरंत टेक ओवर कर सकता है और तुरंत कंपनी चला सकता है। सेम हैपेंड विद लार्सन एंड टूब्रो। अभी लार्सन एंड टूब्रो के जो एएम नायक जी हैं, जब वो रिटायर हुए, 32 साल वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, रिटायर हुए, 3 बड़ी लीडरशिप टीम तैयार करके रिटायर हुए। तो ये भी इंश्योर करो ना कि लीडरशिप में कोई इंपॉर्टेंट की मैनेजरियल पर्सनल छोड़ते हैं तो उनकी जगह सही लोग लेने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग दे दी गई है, कंपनी स्मूथ तरीके से चलनी चाहिए यार। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाता है। फॉरगेट अबाउट एवरी कंपनी, लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट ग्रुप इन इंडिया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप टाटा ग्रुप, known for the governance. What happened in Tata Group? It was so unfortunate that Mr. Ratan Tata was about to retire. There was a selection committee which was in place. A selection committee was there. The selection committee was created. Who will be the chairman post Ratan Tata? They could not decide on who will be the chairman after Mr. Tata. The one person who was in the selection committee, Mr. Cyrus Mistry, eventually he himself became the chairman. He was given a choice that you take over, and he became the chairman. So it is unfortunate that जो प्लानिंग है नॉमिनेशन की इंडिया में उतनी अच्छे से नहीं होती है। स्टीव जॉब्स के बाद आप देखो, एप्पल में भी 1-2 साल तक थोड़ा टंटा था, बट फिर भी चीजें स्मूथ हो गई। बिल गेट्स ने ये काम अच्छा कर लिया था कि वो काफी समय पहले ही उन्होंने प्रोफेशनल्स के हाथ में कंपनी दे दी थी। तो डायरेक्टर्स फ्यूचर में कौन हो उनको ढूंढना शुरू करो, ऐसे एट्रीब्यूट्स डिसाइड करो कि हम कौन से स्किल्स, किस प्रकार के एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं हमारे फ्यूचर डायरेक्टर्स में। फर्दर रिकमेंड टू अ बोर्ड a policy which is related to the remuneration. Make sure that there is an effective policy for valuation of the performance of directors. So very crucial committee, ये बहुत important committee होती है। मैं तो अभी बहुत short में ही बता रहा हूँ आपको। 178 subsection 5 सबसे simple, in any company जहां 1000 या 1000 से ज्यादा सिक्योरिटीज होल्डर्स हैं, सो शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सारे सिक्योरिटीज होल्डर मिला के 1000 से ज्यादा हो जाएंगे, तो कंपनी शैल इंश्योर दैट देयर इज वन स्टेक होल्डर्स कमेटी। अभी जैसे हम लोग की भी कंपनी में था, तो हम लोग की कंपनी में क्या होता था, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक बॉक्स फाइल बनती थी। वो बॉक्स फाइल में जितनी भी इन्वेस्टर्स की कंप्लेन आती थी, वो इन्वेस्टर्स की कंप्लेन हम बॉक्स फाइल में रिकॉर्ड करते थे, और उसके बाद जब भी ये स्टेक होल्डर्स कमेटी की मीटिंग होती थी, हम वो कंप्लेंट्स टेबल करते थे वो स्टेक होल्डर्स कमेटी में। और फिर स्टेक होल्डर्स कमेटी के जो डायरेक्टर्स होते थे, जो मेंबर्स होते थे, वो लोग डिसाइड करते थे कि वो कंप्लेंट्स का क्या करना है। अगर कंप्लेन रिड्रेस हो जाती थी तो हम लोग उसका रिड्रेसल लेटर भी फाइल में ही इंडोर्स करके फाइल में ही इनक्लोज करते थे। तो ऐसी हर फाइनेंशियल ईयर की जितनी कंप्लेंट्स आई, उस पर क्या एक्शन लिया गया, वो सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्योंकि आगे चल के वो उसके भी कंप्लायंसेस के नॉर्म्स होते हैं। जब आप बड़ी कंपनी बन जाते हो, लिस्टेड कंपनी बन जाते हो, तो ये भी एक परफॉर्मेंस मैट्रिक है आपका। अगर आपने निवेशकों की समस्याओं का समाधान दिया है, तो बहुत सारी चीजों में आपको लीनियंसी प्रोविजंस लागू होते हैं फ्यूचर में, तो इसका काफी ध्यान रखती है कंपनीज। ओके, 179 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सॉरी, 179 के पहले एक और चीज बची हुई थी, आई एम सो सॉरी गाइस, आर यू देयर? मैं ही बोल रहा हूं, तुम हो क्या भाई लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैं बोल रहा Yes, हूं, sir. सब ठीक है ना? All good. बोलिंग तो और मजे करते हैं यार। अच्छा, मैं ठीक है, तुम्हें ठीक लग रहा है? सब मजा आ रही कि नहीं आ रही? नो फीडबैक। Yes, sir. ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग के साथ भी पता है इतना अजीब है, एज अ टीचर व्हाट यूज्ड टू हैपन, हम लोग रोज 500 लोगों से मिलते थे और भयंकर सेटिस्फैक्शन के साथ हम लोग रोज घर पे वापस आते थे, क्योंकि यार
अच्छा पढ़ा दो तो बहुत जबरदस्त फीडबैक आ रही होती थी, सारी हूटिंग हो रही है एंड मजे हो रहे होते थे. अभी इवन वी नो दैट द फीडबैक्स, मतलब ऑडियंस भी शाय होती है ऑनलाइन तो वी डू अंडरस्टैंड दिस. बट आई होप आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो और ऑफ कोर्स वी विल हैव एन इंटरेक्शन आल्सो. तो ये वाला मैं पहले पोर्शन कंप्लीट कराता हूँ. विजिल मैकेनिज्म की बात करते हैं. नाउ in any company you work in, मैं पता है मैं आपको मेरी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ. We used to work in Infosys, लेजेंडरी कंपनी है. फिर भी पता है अंदर अंदर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गड़बड़ करते हैं. तो विजिल मैकेनिज्म के भी प्रोविजन 177 में ही है. ऐसी कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है या जिसकी बोरोइंग बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, चाहे फिर वो 1 रुपया भी डिपॉजिट पब्लिक से लिया होगा, ऐसी कंपनीज को विजिल मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना है. नाउ व्हाट इज विजिल मैकेनिज्म? बेसिकली दिस इज अ फैसिलिटी गिवन टू द एम्प्लॉइज कि अगर वो कंपनी में कोई रॉन्ग को रिपोर्ट करना चाहते हैं, कोई रॉन्ग डूइंग को रिपोर्ट करना चाहते हैं, कंपनी में कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस को रिपोर्ट करना चाहते हैं, दे कैन यूज दिस फैसिलिटी. विजिल मैकेनिज्म वो लोग समझ के they can actually use this mechanism and they can actually complain to the senior officials who shall oversee this vigil mechanism. अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी will oversee this. अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो the director who has been nominated by the board, वो डायरेक्टर ओवरसी करेगा. अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आई डिस्कस फ्यू थिंग्स. आई वुड लाइक टू अगेन डिस्कस. लॉन्ग बैक इन्फोसिस में नारायण मूर्ति के अलावा देयर वाज वन मोर मूर्ति व्हिच वाज फनीश मूर्ति. टेकी बंदा था, लेजेंडरी टेक्निकल स्किल्स लेजेंडरी थी बंदे की. he was known in circuits. What happened? He had harassed one woman at workplace. Now the management of Infosys, Narayan Murthy, these people were very stringent with this and they said ki boss kitne bhi aap technically strong ho, we cannot keep you here. Fanish Murthy was actually thrown out. He was shown the doors by management of the Infosys and eventually this became an example in industry. और IT इंडस्ट्री में महिलाएं बहुत होती है. वुमेन वर्कफोर्स TCS में 1.5 लाख से ज्यादा वुमेन वर्कफोर्स है. इन्फोसिस में भी वुमेन वर्कफोर्स इज मोर देन 1 लाख. If you cannot ensure कि महिला, if the woman is not feeling safe at workplace, how she will be able to exercise her creative mind? वो safe ही feel नहीं कर रही है तो वो काम क्या करेगी? वो अपने आप को safe feel नहीं करती. The environment is not conducive for working. She will not be able to exercise her mind. In fact, we will be soon discussing the Prevention of Sexual Harassment Act, the POSH Act, which is called as POSH in India. In fact, अगर किसी भी वर्कर के साथ harassment हो रही है, तो it is the breach of your fundamental right to life, right to exercise, freedom to decide the profession, freedom to decide the trade. ये तो आपका basic, आपको आपके फंडामेंटल अधिकार उससे वंचित किया जा रहा है. तो अगर इस प्रकार का कोई सिचुएशन हो रहा है, देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म. अब देखो हिंदुस्तान में TVF, अभी कोटा फैक्ट्री आया, एस्पिरेंट्स आया, लेजेंडरी है सब. अब प्रॉब्लम सिर्फ कहां हुई? जो अरुणव कुमार है, जो CEO है, बेचारा वो हैरेसमेंट के केस में फंस गया. कुछ साबित नहीं हुआ, पता नहीं वो कौन क्या सही है, कुछ पता नहीं है. बट ही वाज एक्चुअली not active for 3 years because there was an issue, because there was a sexual harassment case. Global नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने निवेश किया हुआ था. For 3 years he could not be very active there. अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है तो पता नहीं है कौन सही है वहां पे. Same happened with this AIB में गुरसिमरन खंबा के खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स आई थी. AIB पूरा का पूरा खत्म हो गया, डिसमेंटल हो गया. Sacred Games बनाने वाली जो कंपनी है, Phantom Pictures, what happened there? Kangana Ranaut had lodged a harassment case against one of the partner of Phantom Pictures, जिन्होंने Sacred Games बनाया. What happened? अनुराग कश्यप ने बोला कि we will dismantle this, तो कंपनी पूरी डिसॉल्व हो गई. So to a great extent, this is very sensitive matter and vigil mechanism strong होना जरूरी है. ये भी डायरेक्टर शुड इंश्योर कि अगर कोई कंप्लेन कर रहा है
तो उसको विक्टिमाइज ना किया जाए, क्योंकि बड़े आदमी के खिलाफ कोई आप एक्शन ले रहे हो तो हो सकता है वो आपको आपके खिलाफ रिटेलिएट करे, आपके खिलाफ एक्शन ले. सो दैट शुड फर्दर इंपॉर्टेंट है, पहले से बता रहा हूं, थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा. If ever you will ask me the most important section of Companies Act, it is 179 without a doubt. It is 179 which actually provides for the powers of the board. औकात क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, क्या पावर्स वो लोग एक्सरसाइज कर सकते, क्या नहीं कर सकते. दिस फंडामेंटली is specified in 179. 179 subsection 1 provides all the powers that the company can exercise. All those powers can be exercised by the board. I repeat, हर वो काम जो एमओए के हिसाब से कंपनी करने में सक्षम है, हर वो एक्ट, हर वो पावर जो कंपनी के पास है, हर वो पावर, हर वो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है. सिर्फ वो पावर्स, सिर्फ वो एक्ट्स जो कंपनीज एक्ट 2013 या आर्टिकल्स के हिसाब से शेयर होल्डर्स को एक्सरसाइज करना है. ओनली दोज मैटर्स कैन बी, दोज मैटर्स विल बी डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स. अदरवाइज जो एक ब्रॉड पावर है वो बोर्ड को दे दिया गया है. हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि ऑल द पावर्स व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द कंपनी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट जो पर्टिकुलर पावर्स शेयर होल्डर्स को मिले हुए हैं बाय कंपनीज एक्ट 2013 और आर्टिकल्स, दोज पावर्स shall be exercised by the shareholders only. Guys, are you there? हो क्या वहां पे क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I hope you are enjoying it. I hope you have your attention on the screen, and I hope आपके स्क्रीन पे यही दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ और नहीं. Yes, sir. 179(2) की बात करते हैं. Let's talk about 179(2). क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लिया हुआ डिसीजन शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग लेके चेंज कर सकते हैं? अगर कोई डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया है, अगर कोई फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में ले लिया है, तो क्या शेयर होल्डर्स, क्या मेंबर्स वो डिसीजन को एक जनरल मीटिंग लेके चेंज कर सकते हैं? No, sir. It can't be done. बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते. अगर ऐसा प्रोविजन, ऐसा ड्रैकोनियन प्रोविजन होता कि बोर्ड ने डिसीजन ले लिया और जनरल मीटिंग में चेंज कर सकते, अगर ऐसा ड्रैकोनियन प्रोविजन कंपनीज एक्ट में होता, द एंटायर इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स वुड हैव बीन डेड. ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है डायरेक्टर्स का, ये खत्म हो जाता, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दे वुड हैव नेवर रिलाइड ऑन द बोर्ड रिजोल्यूशन, बिकॉज़ दिस बोर्ड रिजोल्यूशन कुड हैव बीन ऑल्टर्ड इजीली. Exactly. जो डिसीजन बोर्ड लेगा उसे जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ऑल्टर नहीं कर सकते. Further, it is 179(3) which is the most crucial one. It is section 179(3) which is the most crucial one. 179 subsection 3 एक्चुअल में एक ऐसा प्रावधान है, एक्चुअल में एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है. 179(3) में ऐसे कुछ स्पेसिफिक मैटर्स हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक मैटर्स हैं जो दिए हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड कर सकते हैं. सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 की पहली खास बात, द बोर्ड शैल have power to decide on the matters prescribed from A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K में फिर all other matters as may be prescribed. 179 subsection 1 2 हो गया. Subsection 3, the board shall have the powers with respect to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. The board shall exercise those powers in the board meeting. So it is not possible to pass these resolutions to transact these matters through circulation. Yes. 179, all the matters which have been prescribed in 179, they shall be decided in the board meeting. You cannot take these matters
by circulation. You cannot take these matters, you cannot pass these resolutions by circulation. Why? Because the matters are of such importance. Fund raise करना, borrow करना, investments करना, merger, acquisition, takeover, सब कामा जो important है वो 179(3) में है. कंपनी सर्कुलेशन से डिसाइड करेगी कि यार लेट्स टेक ओवर दिस एंटिटी. टाटा मोटर, जैगवार, लैंड रोवर ले लेते हैं फोन पे, ईमेल पे. नॉट पॉसिबल. 179 subsection 3, the board shall exercise the following powers in the board meeting itself. So borrowing power, investment power. सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी सिक्योरिटी इशू करना, अरे टू डू और नॉट टू डू, कौन से शेयर इशू करना, शेयर इशू करना, कर्जा लेना, इक्विटी शेयर इशू करना, आउटसाइडर्स को शेयर इशू करना, राइट्स इशू लाना, भाई कौन से वे से फंड रेस करना. प्राइमा फेसी हु डिसाइड्स? द बोर्ड डिसाइड्स. कंपनी की कोई अंडरटेकिंग बेचनी है, कंपनी को कोई धंधा बेचना है, डीमर्जर करना है. पैराशूट नारियल तेल बनाने वाली कंपनी का नाम है मेरिको. 2014 में मेरिको ने अपनी एक कंपनी को डीमर्ज कर दिया. मेरिको एक कंपनी और बना, आपको शायद शौक होगा सुन के, एक कंपनी उसका नाम है काया स्किन क्लिनिक. बहुत सारी शायद द गर्ल्स माइट नो इट. काया स्किन क्लिनिक एक्चुअली ये पैराशूट नारियल तेल बनाने वाली कंपनी का ही हिस्सा था, बट इसको डीमर्ज किया गया. तो एक कंपनी से कोई दूसरी एक एंटिटी को डीमर्ज करना, दो कंपनीज का मर्जर करना, एक एंटिटी दूसरी को एक्वायर कर रही है, all these matters fundamentally shall be decided at the board level in the board meeting by the board of directors. इनमें से 3 पावर्स ऐसे हैं जो बोर्ड डेलीगेट भी कर सकता है. अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप उस पर देख पा रहे होंगे, नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, मेरे सामने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी खुले हुए हैं. मैं स्क्रीन शेयर हैंड रिटन नोट्स का अभी नहीं कर रहा हूं. आई हैव चोजन कि उसको हम सेकंड सेशन में लॉन्च करेंगे. तो 179 की अगर हम बात करें, there are certain matters. I allow me to read this please. Sorry, इसको headphones लगाना जरूरी है. Yeah, 179 guys, please focus. To make calls, to authorize the buyback, to do or not to do the buyback. Fundamentally buyback करना या ना करना बोर्ड डिसाइड करता है. बाद में फिर रेजोल्यूशन शेयर होल्डर का लगेगा नहीं लगेगा अलग बात है. करना या नहीं करना बायबैक 179 बोर्ड का पावर है, बोर्ड मीटिंग में होगा. टू इशू सिक्योरिटी, शेयर इशू करना या डिबेंचर इशू करना, जीडीआर इशू करना या डीवीआर इशू करना, जो भी टाइप की सिक्योरिटी इशू करनी है, करना है कि नहीं करना है, कौन सा सिक्योरिटी डिसाइड करना है, बोर्ड लेवल पे डिसीजन लिया जाता है. तो बोर्ड मीटिंग हैज टू बी टेकन, द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द बोर्ड. डी एंड एफ, द बोरिंग पावर, इन्वेस्टिंग पावर एंड लोन देने का पावर. ये 3 पावर्स ऐसे हैं जो बोर्ड एक कमिटी को डेलीगेट कर सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर को डेलीगेट कर सकता है. अगर इंडिया के बाहर कोई ब्रांच ऑफिस है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है. अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करना, कंपनी का धंधा डाइवर्सिफाई करना. मुकेश अंबानी पहले पेट्रोकेमिकल में था, अभी टेलीकॉम में, रिटेल में. तो डाइवर्सिफिकेशन का फैसला लेना ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि डाइवर्सिफाई करना है या नहीं करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हम बिल्कुल ही एक नए बिजनेस वर्टिकल में एंटर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल. यूजुअली हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी उसके बारे में बात करते हैं. रिलायंस इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल में था यार, अभी जियो इन्फोकॉम, रिलायंस रिटेल, व्हाट नॉट, एवरीवेयर मोटावाई इज देयर. So decisions like this. अभी टाटा टी का मैं बहुत एग्जांपल देता हूं आपको. तो टाटा टी जो है पहले सिर्फ चाय उगाती थी, टी प्लांटेशन, बाद में बेवरेजेस में एंट्री की, बाद में माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर एक्वायर किया, बाद में अभी वो टाटा कंज्यूमर नाम हो गया. अब टाटा नमक भी जो है वो टाटा कंज्यूमर लिमिटेड के बैनर में बिकता है. तो अब वो बिग बास्केट खरीद लिया. तो बैंगलोर में अगर आप सुबह उठोगे और आपको सैंडविच चाहिए या आपको ब्रेड बटर चाहिए या फिर इवन अगर आप मिल्क भी डिलीवरी से बुला रहे हो, बिग बास्केट करती है. तो टाटा कंज्यूमर डाइवर्सिफाई करती रही. एनीवे, सो दीज मैटर्स 179 के एक एक मैटर को रट डालना. अगर आपको स्मार्ट वर्क भी करना है ना, 179 तोड़ दो पूरा, खा जाओ 179 को. मैं आपको बता रहा हूं भाई, मैं तुमसे कभी सामने से बात नहीं किया, इसीलिए मेरे को एक बार लगता है कि मैं आपसे बहुत क्लियरली बात करूं.
आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. मेरे कोई बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं थे. 12th स्टैंडर्ड में मेरे परसेंटेज थी 50.17. आई रिपीट, 50.17 was my percentage. When I see you guys, you have, majority people come in with 80, 75, 70 plus. And सबसे अजीब बात है, they ask the question कि सर हमसे हुआ क्या? Please stop asking this question. अगर तुम्हारा मन है CS करने का, अगर तुम्हारा इंटेंशन है, किसी का पिताजी तुम्हें नहीं रोक सकता, बट आपका बैक ऑफ द माइंड फोकस चाहिए थोड़ा. बैक ऑफ द माइंड CS मतलब आप सोने के पहले ये सोचते हो, कोई गाना सुनते हो तो आपको CS वाला कोई थॉट आ जाता है, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक. हो सकता है किसी की लाइफ में टेम्पररी 2-3 महीना खराब चल रहा हो या कोई फेस चल रहा हो, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट. रफ पैचेस आर पार्ट ऑफ लाइफ. तो अगर ऐसा भी कुछ चल रहा है, नॉट अ बिग डील. ठीक है, 1-2 महीना अच्छा नहीं गया, फर्क नहीं पड़ता, यू कैन मेक अ कम बैक. बट इतना डर क्रिएट हो गया है, इतना डरा दिया है सब लोगों को, इतना डर गए हैं लोग. क्योंकि जितने भी लोग खाली बैठे हैं, जितने भी लोगों से आपकी बात हो रही है, मे बी दे आर नॉट क्लियर. जो क्लियर हो गया वो आपसे क्यों मिलेगा, वो आपसे क्यों बात करेगा? इज नॉट फ्री. एनीबडी हु हैज क्लियर्ड, उसको 9 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, इंटर्नशिप करनी है, 150 ट्रेनिंग्स करनी है. तो चक्कर ये है, जो फ्री, जो पास हो गया है. अब जैसे सेजल है, आई एम नॉट वेरी श्योर सेजल इज अटेंडिंग दिस और नॉट, शी वाज नॉट वेल. सेजल का भाई है यश पाहुजा, बॉम्बे में काम कर रहा है, उसको दिख गई है सामने इंडस्ट्री कैसे. तो सेजल की मोटिवेशन लेवल शायद अलग होगी, क्योंकि उसका भाई उसके सामने है, उसका भाई उसके सामने ट्रांसफॉर्म हो गया. 3 साल पहले उसकी शक्ल देख लो, अभी उस आदमी की शक्ल देख लो, 100% चेंज है. सम डे आई कॉल ईशा शर्मा इन योर क्लास, मैं आपकी क्लास में उसका सेशन करूंगा. शी गॉट प्लेस इन जी टेलीफिल्म्स, वो जी टेलीफिल्म्स और एसएल ग्रुप में काम कर रही है. 5 years back, look at her photograph. Today, you look at her photograph. Forget about the personality. She completely has, उसने खुद को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है. One of my student was working in National Stock Exchange. 24-year lady, 24 साल की लड़की, लिस्टिंग डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट ने उसका CV एडिट किया. वो जो जॉब में गई थी, उसके लिए 3 साल का वर्क एक्स रिक्वायर्ड था. मैंने उसको लाया, तो इंटरव्यू तो जा, और वो बंदी भी तगड़ी है बहुत. इंटरव्यू में गई, वाइस प्रेसिडेंट को इतनी पसंद आई, उसने बोला मैं तेरा CV एडिट करती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो. शी गॉट अपॉइंटेड देयर राइट अवे, वाज वर्किंग इन लिस्टिंग डिपार्टमेंट. शी इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया. कोरोना के पहले की बात कर रहा हूँ, कोरोना के पहले ही उसको ऑफर आया कि, क्योंकि उसकी शादी हो गई, तो शी लेफ्ट द जॉब ऑल्सो. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वालों ने पहली बंदी को ऑफर दिया कि वी विल अलाउ यू टू वर्क फ्रॉम होम, प्लीज वर्क फॉर अस. वो भी लिस्टिंग डिपार्टमेंट. यू हैव नो आइडिया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई आदमी काम कर रहा है, उसकी कितनी रेलेवेंस है. तो एनीवे, तो आपकी पर्सनैलिटी, और फंडामेंटली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको प्रोबेबली अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है, या आप एक लाइफस्टाइल को, आप लाइफ को एक अलग तरीके से लीड करना चाहते हैं, इफ यू हैव डिसाइडेड इन योरसेल्फ, अगर आपने सोच लिया तो आप कर लोगे. अगर आप बार बार ये खुद से भी क्वेश्चन पूछोगे ना, आप मत करो ये सब, मतलब अपने आप को सवाल मत करो. मुझे तो ये भी लगता है कि मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा, और मुझे लगता है मैं बन भी जाऊंगा अगर मैंने सोच लिया तो. नंबर 1, क्यों डाउट कर रहे हो खुद को? जो ये सवाल है ना कि होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले सवाल डिलीट करो, बिकॉज द मोमेंट दिस थॉट इज देयर, दिस इज क्रिएटिंग अ डाउट. मेरे साथ एक और अच्छी बात हुई थी. मैं जब CS कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि डिफिकल्ट है. मुझे मेरे जियाजी ने बोला कि तू CS कर ले, और MBA की एंट्रेंस में दे नहीं पाया था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था. मैंने कहा ठीक है, ट्राई करके देखते हैं. सच्ची में मुझे पता नहीं था कि डिफिकल्ट कोर्स है, तो मैंने दिया, मेरा हो गया. लेकिन मेरा तो हुआ, मेरे किसी फ्रेंड का नहीं हुआ. तो मेरी पहली बात पता है तब फटी कि जब मैंने देखा कि यार इसमें तो लोग पास नहीं होते. अगले ग्रुप में मेरी इतनी फटी. जून का अटेम्प्ट था, अप्रैल 10 तारीख को रात को 3-4 बजे इतना डर लगा. हम लोग किसी फ्रेंड के घर में नाइट आउट करके पढ़ रहे थे. इतनी फटी कि हम सुबह 4 बजे बिना पैसे के, बिना कोई तैयारी के डोंगरगढ़ निकल गए. इतनी फटी हो गई हमारी, इमेजिन करो. पता है डरे क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में कोई पास नहीं हुआ था, और पूरे दुनिया में डर का माहौल था. साला पहले पता नहीं था कि पास, इसमें डरना भी होता है, तो चुपचाप निकल गया. सेकेंड मॉड्यूल में जब हम लोग, जब दूसरा वो कर रहे थे, जब दूसरा पेपर दे रहे थे, तो अच्छी जो बच्चियां थी क्लास की हमारी, वो भी फेल हो गई थी. तब हम पहली बार डरे. तब मेरे को डर हुआ कि यार, मैंने कहा यार इसमें तो फेल भी होना पॉसिबल है. तो मुझे पता नहीं था, तो मुझे डर नहीं था, और मैं पास भी हो गया था. एनीवे,
आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, जबकि मैंने सोचा था मैं कुछ फालतू बात करूंगा नहीं मुझे एनीवे आई होप दैट्स ओके विद यू ऑल. लेट्स गो टू 180. 180 में दो चीजें सबसे ज्यादा क्रूशियल है. 180 में दो बातें सबसे ज्यादा क्रूशियल है जिसके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए. उसमें से भी 180 आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा मैं आपको एडिट करके बता देता हूं. 181C, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. कंपनी बोरो करेगी ना क्लास कभी भी, 180 इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्रूशियल. ना इमेजिन अभी पार्ट ए में अभी डिबेंचर पढ़ने वाले हैं, डिपॉजिट्स पढ़ने वाले हैं. अब चाहे वो डिबेंचर है, चाहे वो डिपॉजिट है, चाहे वो पार्ट ए में आप पढ़ रहे हो, चाहे उसके लिए पूरा अलग से चैप्टर बना है, पूरा अलग से उसके लिए सेक्शंस है, अलग से चैप्टर है, उसके बावजूद 180 की रेलेवेंस वहां पे भी खत्म नहीं होगी. और इसीलिए मेरे भाइयों और सॉरी आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, प्लीज अलाउ मी. कहाँ है यार ये? सॉरी गाइस, सॉरी. सो 180 की बात करते हैं. 179 प्रोवाइड्स फॉर द पावर्स ऑफ द बोर्ड. 179(1) जो पावर कंपनी के पास है, हर वो पावर, हर वो काम डायरेक्टर भी कर सकते हैं. सिर्फ वो काम, वो एक्ट, वो पावर बोर्ड नहीं एक्सरसाइज कर सकता जो कंपनीज एक्ट 2013 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से शेयर होल्डर्स को दिए गए हैं. सबसेक्शन 2, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बार फैसला बोर्ड मीटिंग में ले लिया, उस फैसले को जनरल मीटिंग लेके शेयर होल्डर्स इनवैलिडेट नहीं कर सकते. सबसेक्शन 3, 179(3) ABCDEFGHIK में जो पावर्स हैं वो बोर्ड एक्सरसाइज करेगा और वो भी बोर्ड मीटिंग में करेगा. सबसेक्शन 4, आप बोर्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालना चाहो तो आर्टिकल से डाल सकते हो. Before we get into 180, let me just talk about 179 a little more. There are two specific, John Shaw and Sons and Milan versus Guardian Plasticate. 179 में एक बार क्या हुआ, एक कैलकाटा हाई कोर्ट का मैटर है. एक कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग फंड रेजिंग राइट्स इशू लाकर करेंगे. इसका मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग, हमारी कंपनी में जो पैसे की जरूरत पड़ रही है वो पैसे हम लोग राइट्स इशू से लाएंगे. सर्टेन शेयर होल्डर्स वर नॉट ओके विद दैट, सो दे अप्रोच कैलकाटा हाई कोर्ट. ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट हेल्ड, unless there are extreme circumstances of malefice, the court will be slow to interfere in the management of the company. अगर बोर्ड अपना काम बराबर कर रहा है, अपने पावर्स की लिमिट में रहकर वो काम कर रहे हैं, तो कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगी. Unless there are extreme circumstances of malefice, that only means अगर डायरेक्टर्स कोई रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई इलीगल काम कर रहे हैं, तो कोर्ट दखल अंदाजी करेगा. वरना the board is well within their power to decide कि राइट्स इशू से पैसा रेज करना है या आउटसाइडर से इशू करना है. सो कैलकाटा हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट है. The second English case is John Shaw and Sons versus Shaw. In that case, what was decided was, in case of the companies, certain powers of management are vested in the board. They alone can exercise those powers. कंपनी के केस में कुछ पावर्स जो हैं, मैनेजमेंट के कुछ पावर्स डायरेक्टर्स को दिए हुए, और जो पावर्स डायरेक्टर्स को दिए हुए वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं और कोई नहीं. ये एक गलत धारणा है कि कंपनी तो शेयर होल्डर्स की है, शेयर होल्डर्स बड़ी अथॉरिटी, डायरेक्टर छोटी अथॉरिटी, डायरेक्टर का लिया हुआ डिसीजन मेंबर बदल सकते हैं. ऐसा नहीं होता. मेंबर्स बड़े, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टर्स के पावर्स को वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर डाइवर्सिफिकेशन का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं. डिसीजन अगर डायरेक्टर्स को लेना है तो वो ही लेंगे. बायबैक करना या नहीं करना ये कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर्स ही करेंगे. शेयर होल्डर बोल सकते हैं क्या नहीं इस साल बायबैक नहीं करेंगे? नहीं बोल सकते. प्लीज अंडरस्टैंड. That's about 179. Let's talk about 180. कहाँ सेक्शन 179 बात करता है पावर्स ऑफ बोर्ड के बारे में, वहीं 180 बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द बोर्ड के बारे में. हाँ 179(3) में पावर्स दिए, हाँ 179(3) में बोरोइंग पावर दिए, लेकिन उसकी एक लिमिट है.
वो लिमिट क्या है? Pursuant to section 180 subsection 1, section 180 subsection 1 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग मैटर्स, जो ए बी सी डी में मैटर्स हैं उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आई रिपीट, सेक्शन 180 subsection 1, the following powers have to be exercised by passing special resolution। अब उसमें है ए बी सी डी, जिसमें से ए और सी है क्रूशियल। अगर कंपनी अपनी अंडरटेकिंग बेच रही है, अंडरटेकिंग मतलब ऐसे छोटा मोटा धंधा नहीं, अंडरटेकिंग की एक्सप्लेनेशन है कि कंपनी की टोटल नेटवर्थ का 20% से ज्यादा वैल्यू वाली नेटवर्थ है, कंपनी के टोटल टर्नओवर का 20% से ज्यादा कमा के देने वाली कोई अंडरटेकिंग है। ऐसे केस में अगर ऐसे धंधे को, कंपनी के ऐसे बिजनेस डिवीजन को, ऐसे अंडरटेकिंग को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, लीज पे दे रहे हो, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड। रीड विद 110 पोस्टल बैलेट से करना पड़ेगा। 180 सबसेक्शन 1 सी, बोरोइंग पावर्स। एक हद तक बोरो करने के पावर बोर्ड के पास है, लेकिन उस हद से ज्यादा बोरो किया तो आपको शेयर होल्डर्स के पास जाना पड़ेगा, आपको निवेशकों के पास जाना पड़ेगा, आपको कंपनी के मेंबर्स के पास जाना पड़ेगा। वो लिमिट क्या है? एग्रीगेट बोरोइंग, जो बोरोइंग कर चुके हैं वो, प्लस जो बोरो करना चाहते हैं वो, दोनों मिला के अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्लस पार, सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व्स, आई एम सॉरी, आई रिपीट, अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये तीनों अमाउंट मिलाकर जो आ रहा है, इससे ज्यादा बोरो करना चाहते हो, इससे ज्यादा कर्जा लेना चाहते हो, स्पेशल रिजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड। मेंबर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। जब हम एग्रीगेट बोरोइंग गिनते हैं ना, तो हम लोग टेम्पररी लोन्स को नहीं गिनते। ऐसा लोन जो विद इन 6 months रीपेबल है, ऐसा लोन जो रीपेबल ऑन डिमांड है, ऐसे पैसे को हम एग्रीगेट बोरोइंग में नहीं गिनते। गाइस, आर यू देयर? तुम जिंदा हो गया यार? तुम ऐसे मुंह बना रहे हो कोई लोग भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार मतलब तुम ही ने बुलाया यार, मैं तो बोल भी नहीं रहा था तुम्हें मिलने की। तुमने खर्चा वर्चा करवा दिया, लाइसेंस मैंने ले लिया, पूरा सेटअप मैंने बदल दिया, आज सारी लाइटिंग वाइटिंग चेंज कर दी, तो अब तो मिलो यार, मतलब मिले हैं तो फिर लेट्स हैव फन यार। तो ठीक है ना, मतलब ठीक तो पढ़ा रहा हूँ मैं कि छोड़ दूं मैं पढ़ाना? नहीं सर, मस्त नहीं पढ़ा सर, है। नहीं बहुत सर। अच्छा बहुत पढ़ा है। अच्छा, बोलते ही नहीं। लेट्स टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशंस। 181, 82, 83 तीनों कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटली हम लोग पावर्स ऑफ द बोर्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस रिस्पेक्ट से 181, 82, 83 को अप्रोच करना चाहिए। 181, 82, 83 फंडामेंटली ये पर्टिकुलर बेयर एक्ट के प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैक्सिमम औकात कितनी है चैरिटेबल फंड को डोनेट करना है। मैक्सिमम तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने से डिसाइड करके कितना डोनेट कर सकते हैं। 182 में मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी डिसीजन लेके कितना दे सकते हैं। सेम विद द नेशनल डिफेंस फंड। पहले तो इसमें लिमिट्स होती थी, अब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वगैरह में तो लिमिट्स वगैरह पूरी हटा दी है। जस्ट अ मिनट, वन फोक इज ट्राइंग टू जॉइन द मीटिंग। यप, तो पहले तो इसमें लिमिट्स होती थी, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए लिमिट खत्म हो गई है। इसके लिए मेरे पास थोड़ी सी कमेंट्री है, प्लीज अलाउ मी 2 मिनट के लिए, मुझे आप प्लीज अलाउ कीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ कमेंट्री करनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसके आने के चांस है। तो आपके नोट्स में जो प्रिंटेड नोट्स है उसमें एक टेबल बनी हुई होगी, अगर आपके पास है तो बढ़िया, नहीं है उससे भी बढ़िया। इंटेंशन ये है ही नहीं कि अभी हम निटपिकिंग करें या माइक्रो मैनेज करूं मैं आपको। आइडिया ये है कि हम जल्दी से पूरे सेक्शंस को रिकलेक्ट कर पाए, तो जो मोटिवेटेड बच्चा है, जो जेन्युइनली पढ़ना चाहता है, वो सेशन के बाद थोड़ा भी उसमें खून होगा तो थोड़ा बहुत तो वो पढ़ ही लेगा आज। तो आइडिया इज नॉट टू माइक्रो मैनेज, आइडिया इज नॉट टू आपका फोकस में एक एक छोटी छोटी बात में इस सेशन में डालू। दिस इज नॉट एन आइडिया ऑफ टुडेज सेशन। द आइडिया इज टू रिकलेक्ट ऑल सेक्शंस टुगेदर, टू हैव अ ब्रॉड पकड़ ऑफ पार्ट बी। ये आइडिया है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उस पर ध्यान दो। 182
हिंदुस्तान में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अगर देना होगा तो कुछ कंपनियों को तो ये अलाउड ही नहीं है, गवर्नमेंट कंपनीज को ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? जिस पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बनेगा, मेजॉरिटी वही लोग आईएएस ऑफिसर्स नॉमिनेट करेंगे सरकारी कंपनियों में। तो मोदी जी और अमित शाह जी फोन करके बोलेंगे कि बीपीसीएल 50,000 करोड़ रुपए भेजो बीजेपी के ऑफिस में, नया स्टैच्यू बनाना है। By the way, I have no affiliation with BJP, I have no affiliation with Congress, I have no affiliation with anybody. Though I was working with Nitin Gadkari's company and जब 2009 में इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, तो हम लोग जनरल मीटिंग से ज्यादा वो लोकसभा की मीटिंग लेते थे। हर संडे भी ऑफिस जाना पड़ता था। 300 लोगों की, मतलब फंडामेंटली हमने मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, गडकरी जी की मुझे पूरी प्रोफाइल याद है। तो मराठी में अगर वो भाषण होता था, साहेब से ना गडकरी नहीं पुलकरी आहे, उन्होंने पुल बनाई क्योंकि। सो इंग्लिश में होता था, ही इज नोन एज फ्लाई ओवर मैन ऑफ इंडिया, टॉक अबाउट पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे एक्सेट्रा। तो पूरी स्पीच मुझे रटी हुई थी। तो 300 लोग आते थे, उनको सबको हम श्योर करते थे कि आप बीजेपी को वोट करो। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज था। हाउएवर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। सो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि 182 में गवर्नमेंट कंपनीज पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं दे सकती। रीजन इज सिंपल, जो सरकार, जिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी, गवर्नमेंट कंपनीज पे कंट्रोल उन्हीं का होगा। तो ऐसे केस में तो वो लोग कुछ भी कर पाएंगे, तो उनको अलाउड नहीं है। ऐसी कंपनीज जिनको इनकॉर्पोरेट होकर 3 साल ही हुए, उनको भी पॉलिटिकल डोनेशन देना अलाउड नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम कितना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? बीजेपी को, कांग्रेस, अलग अलग पार्टीज को? द आंसर इज देयर इज नो लिमिट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना कपड़ा उतार के, कंपनी के लिए कर्जा लेके भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ये अमेंडमेंट में हटाई गई थी और ये एक लौता अमेंडमेंट था जहां पे किसी भी प्रकार का कांग्रेस का, बीजेपी का कोई भी डिस्कशन हुआ नहीं आपस में। सो देयर वाज नो डिस्कशन, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज दे वर हैप्पी। ठीक है, कर लो, वी डोंट माइंड। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कितना भी दिया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं, जितना मतलब 500 करोड़ देना है दे सकते हैं। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना भी दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। द ओनली थिंग इज आपको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है आपने, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया ये भी बताना जरूरी नहीं है। God knows what people were thinking while making such draconian provisions. But anyway, number one, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दोगे तो कोई लिमिट नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना भी दे सकते हैं। द ओनली कंप्लायंस इज अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बता दो कि कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, वरना कंपनी को 5 गुना कंट्रीब्यूशन का 5 गुना फाइन हो सकता है, जो डायरेक्टर की डिफॉल्ट 6 महीने तक जेल हो सकती है, या जितना डोनेशन दिया उसका 5 टाइम्स पेनल्टी लग सकता है। पता नहीं क्यों बनाया ये प्रोविजन। सबसेक्शन 181 टू चैरिटेबल फंड्स। बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स का मतलब जो हिंदुस्तान में एनजीओज हैं, चैरिटेबल फंड्स हैं, उनको कितना डोनेशन दिया जा सकता है? द लिमिट इज 5%। दैट डज नॉट मीन कि 5% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। 5% से ज्यादा देना होगा तो आपको जनरल मीटिंग में जाना पड़ेगा, मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फर्दर, और डिफेंस फंड नो लिमिट। तो देश की सुरक्षा के लिए अगर पैसा जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है। इसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको बात बताने दो प्लीज। 2014 में ना टीसीएस ने, नरेंद्र मोदी जो है वो वाराणसी से इलेक्शन लड़ रहा था, फ्लिपकार्ट और ये सारी कंपनियों के ऊपर बहुत गाज गिर रही थी। इनफैक्ट नागपुर की ही एक काइट एसोसिएशन ने उनके ऊपर केस किया था कॉम्पिटिशन लॉ में। तो फ्लिपकार्ट ने ना वाराणसी में 200 करोड़ के बाथरूम बनाए थे, 200 करोड़। बाद में टीसीएस ने, जब ये स्वच्छता भारत अभियान आया, सीएसआर का एक प्रोविजन है 135, उसमें कंपनीज को कंपलसरीली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए स्पेंडिंग करनी पड़ती है। आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, वो डिडक्शन हो गया शायद अभी उसमें उसको डिडक्शन में अलाउ कर दिया शायद। टीसीएस 200 करोड़ के शौचालय बना रही है, एयरटेल 100 करोड़ के बना रही है। तो ये सब भी हुआ है। और एनीवे, तो चैरिटेबल फंड्स को बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। इट्स अ नोबल टास्क, ऐसा कोई गलत नहीं है इसमें। बट ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो मुझे याद आई मैंने आपको बता दी। एनीवे,
आई होप आप लोग को ये समझा होगा मित्रों, हाँ या ना तो बोलो। हाँ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, कोई मार थोड़ी रहा है तुमको, ऐसे बैठे हो ऐसे। और मैं तो आई एम मोर देन हैप्पी, अगर मुझे बोलोगे मिलना है मोर देन हैप्पी, बोलोगे नहीं मिलना है मोर देन हैप्पी, मैं दोनों में तैयार हूं। मैं तुम्हें बताऊं एक बात, एग्जीक्यूटिव में ना पूरी दुनिया, पूरे साले इंडिया में किसी ने लाइव बैच शुरू नहीं की थी, हमने लाइव शुरू कर ली थी। पता है क्या होता था, बच्चे आते थे कैमरा बंद करके बैठते थे, कोई सवाल पूछो म्यूट करके बैठते थे। देन वी डिसाइडेड कि वी विल रिकॉर्ड, और जो लाइव ले रहे हैं उसमें सिर्फ चैटिंग का ऑप्शन होता है, तो उल्टा मैं तो गाना वाना बजाता था यार क्लास में। तो ऑडियो विजुअल का मतलब ये वाला क्लास होता है जो अभी हमारा चल रहा है। तो आप बात बात करते रहोगे तो ये सेशंस में लेते रहूंगा, और आपकी बैच के बाद में मेरा लाइव ऑक्यूपेशन बहुत कम है, तो दिसंबर तक आई कैन रियली हैंड होल्ड प्रोवाइडेड यू गाइस आर इंटरेस्टेड। एनीवे, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं 184 की। 184 में बाय बहुत भयंकर रेलेवेंट सेक्शन। 184 इतना रेलेवेंट है कि इसका असर आपने 167 में भी देखा होगा, इसका असर 167 में दो दो बार मिलता है। तो लेट्स टॉक अबाउट 184 अगेन। फंडामेंटल प्रीमाइस 184 का क्या है? 144 इज डिस्क्लोजर्स बाय डायरेक्टर्स, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स। 184 सबसेक्शन 1, जब भी कोई कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। हर फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में फिर से अपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। जब जब उसके इंटरेस्ट ऑल्टर हुए, ऑल्टरेशन के बाद जहां जहां जिस जिस कंपनी में वो डायरेक्टर होगा उस कंपनी में फिर से इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अगर अच्छा, जैसे ही वो अपॉइंट हो उसने अपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिए, तो अब अगर वो इंटरेस्टेड है, ही कैन नॉट वोट, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट। 174 में सिर्फ ये लिखा था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं तो कोरम कैसा होगा, ये वहां नहीं लिखा हुआ था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट नहीं कर सकता, इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वोट नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो 184(2) में लिखा है। ओके, अगेन क्यों लिखा है? सिंपल रीजन, डिस्क्लोज मतलब इच्छा शक्ति का टकराव होगा। आप एज ए डायरेक्टर कंपनी में फिड्यूशरी ड्यूटी लेकर बैठे हो। फिड्यूशरी ड्यूटी का मतलब होता है यू आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, नॉट योरसेल्फ। तो व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, आप ऐसे मैटर्स में अगर पार्टिसिपेट करोगे, डिसीजन लोगे जहां आपका निजी इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, तो उसकी जो ये इंश्योर करना कि आप बिना डिवॉइड ऑफ इमोशन होके फैसला ले रहे हो, ये काफी डिफिकल्ट होगा। और इसीलिए प्रिंसिपल है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट भी नहीं कर सकते, डिसीजन भी नहीं ले सकते। जनरल में जब बोर्ड मीटिंग्स होती थी ना, हम लोग जब बोर्ड मीटिंग्स में थे, तो एक बोर्ड मीटिंग हुई थी जहां नितिन गडकरी जी, उस समय भी भाई वो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, तो ही वॉज इंटरेस्टेड पर्सन। एक पर्टिकुलर मैटर था जहां वो इंटरेस्टेड थे। तो अब यूजुअली अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड होता है तो वो रूम के बाहर जाता है उठ के, बोर्ड रूम तो पूरे साउंड प्रूफ जगह होती है। ऑर्डिनरीली कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता है तो ही कैन नॉट पार्टिसिपेट, ही कैन नॉट वोट, तो प्रॉपर रूम से उठ के बाहर उसके लिए ऐसा होता है। गडकरी जी ऐसे सिर्फ उन्होंने चेयर पीछे कर ली, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, जो तुमको करना कर लो। तो इवेंचुअली वो मैटर वैसे इतना ग्रेव नहीं था, उसमें कोई टेंशन नहीं था, तो वो मैटर पास हो गया था। But he happily recused himself and he said, okay, I'm the interested party, I recuse myself, I will not be participating in the decision. Eventually the other directors discussed and passed the resolution. For the 184 subsection 3, अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने इंटरेस्टेड मैटर में पार्टिसिपेट कर लिया, वोट कर दिया, तो एट द ऑप्शन ऑफ मेंबर्स वो वॉइडेबल होता है। मेंबर चाहे तो ऐसे डिसीजन को वॉइड बना सकते हैं, घोषित कर सकते हैं कि ये वॉइड हो चुका है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बोला तो वो वैलिड होगा। 184(4) बात करता है, अगर आप वोट कर लेते हो जहां इंटरेस्टेड हो, पार्टिसिपेट कर लेते हो जहां इंटरेस्टेड हो,
ऐसे केस में आपको 1 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। फॉर द 184 सबसेक्शन 5, अगर आपने ऐसे मैटर में पार्टिसिपेट किया जहां आप इंटरेस्टेड थे, जहां किस्सा चल रहा था, तो आपको 1 लाख तक का पेनल्टी है। 184(5) पता है क्या बोलता है? अगर आपका किसी कंपनी में अप टू 2% शेयर होल्डिंग है ना, अप टू 2%, अकेले में या रिलेटिव्स के साथ मिलके या डायरेक्टर्स के साथ मिलके अप टू 2% है, ओके है। लेकिन 2% से ज्यादा है तब आपको 184 की चिंता करनी है। अगर आपकी अप टू 2% तक की होल्डिंग है, नो प्रॉब्लम्स, ऐसे मैटर्स में ये 184 लागू ही नहीं होता। क्योंकि एज अ डायरेक्टर, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं भी तो पैसा कमा रहा हूँ ना, मैं भी तो बहुत सारी पब्लिक कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स के लिए शेयर्स खरीद रहा हूँ ना। तो अंडर 2%, लेस देन 2% इज नॉट अ सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, एंड दैट इज द रीजन अगर अप टू 2% तक किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग है भी, 184 लागू नहीं होता। Further, let's talk about the last one in this series. After that, we will be taking a bio break. 185. 185, it provides about loan to directors, etc. Before diving deep into each subsection, let us understand how the section has been structured. Lot of instances I have seen that students make such mistakes कि वो ना सीधा रीड करना ही शुरू कर देते हैं, वो ब्रॉड पिक्चर को मिस आउट कर जाते हैं। जबकि कंपनी सेक्रेटरीशिप एक ऐसा एग्जाम है, या सीएस बनना ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट कोर्स, बट अगर मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स का मैक्रो लेवल पे आप समझ लो ना कि चीजें क्या चीज बनी हुई है, क्या प्रावधान बना हुआ है, क्यों बनाया हुआ है, बहुत बार अगर आप थोड़ा बिगर पिक्चर समझ जाओ तो आप सीएस क्लियर कर सकते हो। बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे का अगर इंग्लिश, एवरेज इंग्लिश भी अगर आपकी है, ठीक ठाक भी लिख देते हो आप, और आपको मैक्रो पिक्चर पता है, आप क्लियर कर जाओगे। आपको एग्जाम में जाना जरूरी है, नींद करके जाना जरूरी है, पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है, ये प्रीरिक्विजिट्स है। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। एग्जाम्स के टाइम में तबीयत खराब हो जाना, एग्जाम के टाइम में बैक पेन हो जाना, एग्जाम्स के टाइम में नर्वसनेस खा जाती है, ये कुछ रीजंस होते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपने डिसाइड किया हुआ है और आप अगर सही संगत में हो, बराबर, देयर आर 4-5 पीपल जो अच्छे एक दूसरे को थोड़ा बहुत पुश करते हैं, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बट यस, डोंट डाइव इनटू माइक्रो प्रोविजंस। बहुत बार आप क्या करते हो ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप ना छोटी छोटी बातों को पकड़ के पागल हो जाते हो। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप माइन्यूट डिटेल में काम करो, लेकिन उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मेजर ड्रोन्स आई व्यू बोलते हैं ना, जो थोड़ा आपको मैक्रो लेवल में पता होनी चाहिए चीजें, तो वो करिए आप। तो 185 एक ऐसा सेक्शन है जिसको उस तरह से पढ़ना चाहिए। 185 सबसेक्शन 1, ये ना प्रोहिबिटिव नेचर का प्रोविजन है। 185(1) बोलता है कि लोन भी नहीं दे सकते डायरेक्टर्स को, उनको उनके लिए गारंटी भी नहीं उठा सकते, और उनके लिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। टू बी प्रिसाइज, 185(1) ये बोलता है कि आप डायरेक्टर को होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, सब्सिडरी के डायरेक्टर को, एसोसिएट के डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, उनके लिए गारंटी नहीं उठा सकते, उनके लिए सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। साथ ही साथ ऐसी कोई फर्म जहां डायरेक्टर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, डायरेक्टर के रिलेटिव्स, डायरेक्टर के पार्टनर्स, ऐसे लोगों को भी आप लोग लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो 185(1) जो है ना, वो एब्सोल्युटली प्रोहिबिट कर देता है, डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, डायरेक्टर के रिलेटिव्स को लोन नहीं दे सकते, ऐसी पार्टनरशिप फर्म, ऐसी फर्म जहां डायरेक्टर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, उनको लोन नहीं दे सकते। तो 185(1) जो है ना, ब्रॉड पिक्चर देखो, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन वाला प्रावधान है। अब आपकी मेहनत कहां है, किनको किनको बिल्कुल देना अलाउड ही नहीं है, ये आपकी मेहनत है, ये पकड़ना। लेकिन अगर आप 185(2) देखोगे तो पता है क्या लिखा है, डायरेक्टर्स द कंपनी में। 184(2) जो है वहां पे क्या बोला, कंपनी चाहे तो दे सकती है, किसको, टू एनी पर्सन इन हुम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। 1, शेयर होल्डर से पूछ लो, कंपनी किनकी, शेयर होल्डर्स की।
तुम किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो? उनके साथ जहां डायरेक्टर, ऐसी एंटिटीज के साथ जहां डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है। कंपनी किसकी? शेयर होल्डर्स की। एक काम करो, उनसे पूछ लो, अगर वो बोलते तो कर लो। अबे जिसका पैसा लगा हुआ है, जिसका पैसा लगा है, जिसका निवेश किया हुआ है, अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं और तुम क्या करें यहाँ पे उनके अधिकारों की बात करने वाले? कभी कभी वो क्रांतिवीर का नाना पाटेकर याद आ जाता है। वो क्या डायलॉग मारता है कि ये कलम वाली भाई भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, उठा डंडा मार। तो यार, द शेयर होल्डर्स हैव बीन गिवन राइट्स, they have their powers. If they want to exercise those powers, they will exercise those powers. If they don't want, फिर मैं और तुम कुछ भी कर ले, है ना? तो 185 सबसेक्शन 2 में सिंपल बात लिखी हुई है कि कंपनी चाहे तो डायरेक्टर्स तो ऐसे पर्सन्स को लोन दे सकती है जहां डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है, सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। वन, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स हैज टू बी पास। सेकंड, जो हमने लोन दिया, जो हमने गारंटी उठाई आपके लिए, या हमने जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की, वो आपके धंधे के लिए यूज हो रही है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज हो रही है। जो बोरोइंग कंपनी पैसा रेस कर रही है, जो पैसा ले रही है, उधार ले रही है, वो अपने धंधे के लिए यूज कर रही है और किसी पर्पस के लिए नहीं कर रही। उसके बाद सॉरी उसके बाद बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या होता है, द पर्सन इन हुम द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड? ये भी क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। एक प्राइवेट कंपनी जहां हमारे कंपनी का डायरेक्टर या तो डायरेक्टर है या तो मेंबर है, ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई, द पर्सन इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। आई रिपीट, ऐसी प्राइवेट कंपनी जहां मेरे कंपनी का डायरेक्टर है या मेरे कंपनी का डायरेक्टर मेंबर है, ऐसी प्राइवेट कंपनी एक ऐसी एंटिटी है इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। तो ऐसी प्राइवेट कंपनियों को लोन देना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और वो प्राइवेट कंपनी सिर्फ धंधे के लिए पैसा यूज करे, चलता। सेकंड, ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट होस्ट 25% राइट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द डायरेक्टर्स। ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि एलएलपी भी आ जाती है बॉडी कॉर्पोरेट में, या इंडिया के बाहर की कंपनी भी आ जाती है। ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जहां हमारे कंपनी का एक डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर मिलके 25% से ज्यादा होल्ड करते हैं। अभी एनी कंपनी wherein you have 25% or more, you are controlling that entity. क्यों? क्योंकि you can stalemate that company. अगर किसी कंपनी का 25% या उससे ज्यादा राइट्स आपके पास है, तो कोई भी मेजर डिसीजन जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लेना होगा, आप उसको रोक सकते हो। कैसे? आप डिसीजन लोगे नहीं ना, आप पास ही नहीं करवाओगे रेजोल्यूशन। तो 25% या उससे ज्यादा अगर आप कंट्रोल करके बैठे हो, तो यू हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन दैट कंपनी। इसीलिए ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जहां 25% वोटिंग राइट्स डायरेक्टर्स के पास है, अकेले में या मिला के। थर्ड, बॉडी कॉर्पोरेट होस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, मैनेजर इज अकस्टम्ड। ऐसी कोई पपेट कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जिसके डायरेक्टर्स वही बोलते हैं जो हमारे डायरेक्टर्स बोलते हैं। दे आर अकस्टम्ड टू एक्ट एज पर माय डायरेक्टर्स विल। मेरे डायरेक्टर जो बोलेंगे वो कंपनी के डायरेक्टर्स करेंगे। मतलब वो हमारी पपेट है, मतलब हमारी कंपनी, वो पूरी कंपनी हमारी कठपुतली है, वो वही करती जो हम बोलते हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको। ऐसी एंटिटीज को देना है दो कंडीशन। स्पेशल रेजोल्यूशन, पैसा धंधे में यूज होना चाहिए। 185(3) जो है ये एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। अभी क्या हुआ था, जब 185 सबसे पहली बार बना था कंपनीज एक्ट में, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ने, बहुत सारी कंपनीज ने मिनिस्ट्री में रिक्वेस्ट डाली कि 185 की वजह से तो हम धंधा ही नहीं कर पाएंगे। तो मिनिस्ट्री को ये बात समझ में आई और उन्होंने 185 को बदला। एक्चुअल में इस चैप्टर का रूल 11 लाया गया था एक्सेप्शंस के लिए, फिर उसको बाद में मॉडिफाई करके सब कुछ, जितने भी रूल अमेंड हुए थे सबको चेंज करके उन्होंने 185 को पूरी तरह से रीनोटिफाई किया, पूरा का पूरा सेक्शन वापस से ड्राफ्ट किया गया। 185 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को लोन देना चाहती है, दे सकती है। क्या कंडीशन है? अगर आपकी कंपनी आपके सभी एम्प्लॉइज को लोन वगैरह की फैसिलिटी देती है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को और होल टाइम डायरेक्टर को भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर भी कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। तो अगर आपकी कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को लोन देने का फैसिलिटी दी है, तो फिर ये मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर्स की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? उनको भी दे सकते हो आप। चल, तुमने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए ना कोई स्कीम नहीं रखी है ऐसी,
फिर भी तुम चाहो तो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। फर्दर, ऐसी कंपनी जिसका धंधा ही क्या है, लोन बांटना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, लेना बैंक, देना बैंक, ये बैंक, वो बैंक, इनका तो धंधा ही लोन बांटने का है। तो ये कंपनीज भी लोन दे सकती है डायरेक्टर्स को। सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम में आप इन लोगों को लोन नहीं दे सकते, बिकॉज देन आप कंपनी के पैसे को मार्केट के रेट से कम में बांट रहे हो, तो वो शेयर होल्डर्स के लिए नुकसान कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। फर्दर, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, अक्सर मेरी कंपनी और मेरी सब्सिडियरी में डायरेक्टरशिप्स कॉमन रहेगी, मेरी कंपनी और मेरी होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टरशिप्स जो है वो कॉमन रहेगी। मेरे कहने का मतलब, इन्फोसिस लिमिटेड है और एक इन्फोसिस लिमिटेड है और उसकी एक सब्सिडरी है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस पिनाकल लिमिटेड। अब हो सकता है डायरेक्टर्स कॉमन हो, मतलब हो सकता है पूजा यहां भी डायरेक्टर हो, पूजा यहां भी डायरेक्टर हो। अगर इन्फोसिस में और इन्फोसिस की सब्सिडरी में दोनों जगह पूजा डायरेक्टर है, तो तब तो लोन बांट ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो ये क्या बकवास है, मैं मेरी खुद की कंपनी, मेरी खुद की सब्सिडरी को लोन नहीं दे पाऊंगा, क्या बकवास है यार। मैंने वो कंपनी प्रमोट की है, मैं वो कंपनी प्रमोट करके मैं वो कंपनी खोल के बैठा हूं, जस्ट बिकॉज द डायरेक्टर इज कॉमन आप मुझे वहां लोन देने के लिए मना कर रहे हो। इसीलिए 185(3) में एक्सेप्शन आया कि अरे तुम्हारी सब्सिडियरी है क्या, तुम्हारा डायरेक्टर वो तुम्हारी सब्सिडरी में भी डायरेक्टर है क्या, कोई बात नहीं, लोन दे सकते हो। सॉरी, सिर्फ सब्सिडियरी है तो लोन नहीं दे सकते, गारंटी दे सकते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी होली ओन्ड सब्सिडियरी है, 100% शेयर्स उस कंपनी में आपके हैं, तब तो लोन भी दे दो, गारंटी भी दे दो, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दो। 185, अभी जो 185 लोन टू डायरेक्टर्स एक्सेट्रा का स्ट्रक्चर है वो बहुत उम्दा स्ट्रक्चर है। कोई भी बच्चा ये सोच के चले 185 भाई देख कुछ चीजें तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, 185(2) कुछ चीजें परमिसिबल है, 185(3) भाई कुछ कुछ चीजों में ना एक्सेप्शन है, 185(1) देख डायरेक्टर्स को तो लोन देना बिल्कुल बनता ही नहीं है, उनके रिलेटिव्स को तो लोन देना बनता ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, तो उनको देना ही नहीं चाहिए, वाजिब है। 185(2) यार, एमडी को, होल टाइम डायरेक्टर को, एम्प्लॉयज हैं, सब एम्प्लॉयज को मिल रहा है तो उनको मिलना चाहिए, हाँ यार, इतनी सीनियर लेवल मैनेजमेंट में मिलना चाहिए, हाँ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके दे सकते हो। तो कहाँ कहाँ परमिसिबल है, 185(2) में आ जाता है। 185(3) आई एम सॉरी, 185(3) में आता है एमडी वाला पार्ट। तो 185(3) तो कुछ कुछ केस में बिल्कुल ही आपको एग्जेम्पशन मिल गया है, 185(2) में परमिशन मिल गई है। फर्दर 185(4) तो है वो पीनल प्रोविजंस की बात करता है, वो कलेक्टिवली मिलके हम याद नहीं करेंगे, पेनल्टीज वहाँ एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको याद कर सकते हो। आई होप आपको 185 भी थोड़ा थोड़ा समझा होगा। नाउ बिफोर आई वाइंड अप दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेशन, लोन का मतलब अलग होता है, एडवांसेस का मतलब अलग होता है। एडवांसेस का मतलब होता है मैंने आपको पैसे दिए, उस पैसे के बदले आप मुझे कोई सर्विस देंगे या गुड्स देंगे, दैट इज एडवांसेस या एडवांसिंग। लोन का मतलब होता है मैंने आपको पैसा दिया और वो पैसे के बदले में आपसे पैसा ही वापस लूंगा, शायद ब्याज के साथ। लोन पे पाबंदी है, एडवांसेस पे नहीं। क्रेडिट सेल भी एक डिफरेंट चीज होती है। आदेश्वर फ्रीडी मेहता का बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट कोट कर रहा हूं मैं। बॉम्बे हाईकोर्ट, in the honorable Bombay High Court, in the case of Freddie Adarshar Mehta, it held that when the company is selling the property, apartment to the directors or the managing director on credit, that won't be considered as loan to director. For that matter, अगर एडवांसिंग भी की तब भी चलेगा, मतलब 40 लाख का अपार्टमेंट है, 20 लाख डायरेक्टर अभी दे रहा है और बाकी के 20 लाख डायरेक्टर अपनी सैलरी से कटवाने की बात कर रहा है, उसे भी लोन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लोन
एक अलग चीज है, एडवांसेस एक अलग चीज है, लोन एक अलग चीज है, क्रेडिट सेल एक अलग चीज है। तो ये सेक्शन जो है वो लोन टू डायरेक्टर्स एक्सेट्रा है, एडवांसेस नहीं, क्रेडिट सेल नहीं। Just take care of these small little things, and I don't feel you will have much problems in this chapter. हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको अपने से भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और नीडलेस टू से इट इज इम्पोर्टेंट कि सेल्फ स्टडी हम करते रहें। सो वी कम टू एंड ऑफ द वन सेशन, ये हमारा एक सेशन हम लोग एंड कर रहे हैं। आई होप इट गेव यू सम पुश। मैं नहीं बोलता कि आपको 100% याद हो गया होगा, बट हाँ, अगर आज रात को बैठ के थोड़ा आपने जान लगा दी तो हो सकता है थोड़ा बहुत क्लैरिटी और आ जाए आपको। थोड़ा बहुत आप ऑफ कोर्स, मतलब इट्स अ टू वे स्ट्रीट। इन एनी प्रोफेशनल कोर्स टीचर इज ओनली 10%, 15% मैक्स, 20% मैक्स। बाकी सारा जो प्रिपरेशन है आई थिंक वो आप लोग कर सकते हो। इस चैप्टर में हमारा एक रिवीजन कंप्लीट हो गया। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द लास्ट रिवीजन, रिकॉर्डिंग्स विल ऑलवेज बी अवेलेबल। इसके अलावा भी वी कैन डू 10 मोर थिंग्स, बिकॉज रिकॉर्डिंग ठीक है अभी लेट तो हुई है। ऑफ कोर्स मैं आई एम वेरी श्योर कि इन योर हार्ट यू विल हैव सम ग्रज। इफ यू हैव इट प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट थोड़ा डिले हुआ है। बट क्योंकि यार सी आई वाज अवेयर दैट एग्जाम्स नहीं हो रही है, अब आई कैन नॉट कम एंड टेल यू कि एग्जाम्स नहीं है तो पढ़ना ही छोड़ दोगे, तो थोड़ा डिले है। बट हाँ, पार्ट बी हमारा आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इसमें थोड़ी थोड़ी आइडियाज आ गई। इसमें मैंने एक चीज आपको 184 में मैं बोलना चाहूंगा कि MPB 1 फॉर्मेट में डिस्क्लोजर दिया जाता है, जिसको 8 साल के लिए प्रिजर्व करना पड़ता है। तो कंसिडर दिस एज ओवर। One more thing that we will be taking care from this chapter is something which is called as risk management committee. The reason I have not shared with you all the portion which is related to risk management committee is because वो LODR के provisions में है, तो थोड़ी maturity आपकी आ जाए उसके बाद I intend to talk about LODR also, because लिस्टेड कंपनीज के लिए नियम है तो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। उसमें ना सिर्फ एक कमेटी आएगी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। मैं सिर्फ ना उसके बारे में थोड़ा सा आपको बोलना चाहता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है ना, उसका सिर्फ एक काम है जो स्पेसिफिकली दिया हुआ है। कुछ कंपनीज को, लिस्टेड कंपनी के लिए नियम है वो, उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंट करनी होती है। One function among other functions which have to be taken care by risk management committee is ensuring that there is adequate safeguard measures for the, what do you call it, cyber theft ना हो। तो साइबर सिक्योरिटी के प्रोविजंस हैं, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को इस बात का ध्यान रखना है कि कंपनी की एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी है। This will become a little more important in your attempt, because for the first time in long time Air India पूरा अकाउंट्स डेटा लीक हो गया। डोमिनोज, जुबिलेंट फूडवर्क्स इंडिया की जो डोमिनोज वाली एंटिटी है, डेटा लीक हो गया। डेटा से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी ये रिसेंट प्रॉब्लम्स बहुत सारे आई है। तो आपके अटेम्प्ट में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इंपॉर्टेंट है। आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का भी वीडियो आएगा, बट LODR के प्रोविजन मैं एक अप्रोप्रिएट टाइम पे ही रिलीज करूंगा, जबकि वो है 10 मिनट का टॉपिक। बट मैं आपको बस बताना चाह रहा था कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाती है, मेन फंक्शन होता है साइबर सिक्योरिटी देखना। ओके, सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस। मेरे हिसाब से इट इज एग्जैक्टली 2 आवर्स, 2 घंटा हो गया है। जरूरत से ज्यादा टाइम चला गया। मैंने 1.5 घंटा सोचा था ये कि 1.5 घंटे में ये कंप्लीट करेंगे, बट ठीक है, फर्स्ट टाइम है और थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करने में समय गया, थोड़ा बहुत मुझे एडजस्ट करने में शायद समय गया होगा। तो आई थिंक सलोनी जी हैड, शुक्ला जी को एक डाउट था। तो शुक्ला जी, अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो मतलब एक तो आप पूछ लो, अगर लग रहा होगा ना बहुत लंबा है तो मैं बोल दूंगा बाद में करेंगे, नहीं तो मैं अभी बता दूंगा। तो जल्दी से एक बार पूछ लो। म्यूट हो सर, लंबा डाउट है थोड़ा। आस्क मी, थोड़ा बहुत। सर, वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स में जो वो आपने रेशो बताया था, वो रेशो
जो इंटरेस्टेड है उनका है कि जो इंटरेस्टेड नहीं है उनका है? मतलब वो थोड़ा डाउट जा रहा है। एक मिनट तो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड। तो मैंने मैथ्स वाला एग्जांपल दिया था ना उसमें, वही। जस्ट अ मिनट। जूम में ना एक्चुअली वी ऑल कजिन्स यूज्ड टू प्ले गेम्स, तो क्योंकि उसमें ऑडियो वीडियो सब कर सकते हैं, दैट इज द रीजन आई थॉट कि यार मिल ही रहे हैं तो इसमें करेंगे यार। नोट्स का वो पेज नंबर 40 है, मतलब 140 है, सॉरी। मैं एक्चुअली ना स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो आई थिंक आई हैव द स्क्रीन नाउ, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं इतनी जोर से चिल्ला रहा हूँ, पता नहीं मेरे अपार्टमेंट के लोग क्या सोचते होंगे। वैसे मैंने तो सब इंतजाम किया हुआ है। हाँ, पहली बात तो मुझे बताओ कि तुम्हें अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर, आप दिख रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अभी देखो। हाँ, आ गया। जय माता दी। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप लोग मुझे कैसे दिख रहे होते हो। मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रही है ऐसे, मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल लाइक दिस। तो वीडियोस तो मैं दूंगा, लेकिन क्योंकि लंबे अवधि के लिए वीडियोस आते रहने चाहिए, तो मुझे आप लोग इतने क्लियरली दिख रहे हो ना, मतलब सी दिस, मतलब तुम्हारे पास भी ये ऑप्शन है, तुम इसको यूज करो। जैसे तुमको स्क्रीन कितना रखना है तुम डिसाइड कर सकते हो। तो आई कैन एक्चुअली मैं यूजुअली ऐसे देख रहा होता तुमको, तो मुझे बहुत मस्त व्यू है, मेरे को तो बहुत मजा आती है इसे पढ़ाने में। सी, और तो क्लीन तो है यार, मतलब कोई इंटरनेट विंटरनेट की घिचकिच नहीं है, होगी भी तो यार 1000 रुपए में तो रिचार्ज हो जाता है आजकल। क्या हुआ? एनीवे, सो नाउ यू कैन सी द स्क्रीन, है ना? 184। शुक्ला जी, यस सर। 174 ना? छोटा सा डाउट है, इसको नहीं रोकते मेरे ख्याल से। सो मेरी बात एकदम ध्यान से, अगर टोटल डायरेक्टर्स में से 2/3, 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है, तब कोरम नहीं बनेगा, क्योंकि 1/3 या 2 कोरम में चाहिए होता है ना? है ना? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, this should be very carefully. For example, there are 9 directors. I'm sorry, is it visible clearly? यस सर। मुझे थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ चीज लग रही हो तो। मान लो टोटल डायरेक्टर्स 9 है, ओके? यस सर। टोटल डायरेक्टर्स 9 है, ओके? यस सर। अगर 2/3 इंटरेस्टेड है, अगर 2/3 इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो मेरे भाइयों, इसका मतलब 6 इंटरेस्टेड हो गए, है ना? तो 6 इंटरेस्टेड हो गए और 3 अभी भी नॉट इंटरेस्टेड। यस? तो अगर 2/3 भी बहुत बार इंटरेस्टेड हुए तो दिक्कत शायद नहीं होगी, लेकिन इमेजिन करो 2/3 से ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, मतलब 6+1 इंटरेस्टेड हो गए, तो क्या 1/3 का कोरम बन पाएगा? है ना? तो ये कोरम नहीं बन पाएगा। दैट इज द रीजन ये टंटा है। 2/3 से ज्यादा लोग अगर इंटरेस्टेड हो गए, मान लो 9 में से 8 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो गए, अगर 9 में से
8 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है, 1% कैन नॉट बी द कोरम। क्या माता जी? Yes, sir. दूसरा एग्जाम्पल सुनो, मान लो 8 डायरेक्टर्स हैं, अगर यार 2/3 भी इंटरेस्टेड हो गए ना, 2/3 कितना आएगा बोलो? 4, I think. 5 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो मान लो अब यहाँ पे 6 डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि 2/3 में भी कोरम नहीं बन रहा होता। अभी वो स्पेसिफिक केस में मैं नहीं आना चाहूंगा, लेकिन कभी कभी 2/3 डायरेक्टर्स ही इंटरेस्टेड हो गए तो शायद कोरम नहीं बनेगा, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 2/3 से ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए तो कोरम नहीं बन पाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज द रीजन कोरम नहीं बनेगा। मतलब इंटरेस्टेड रहेंगे तो वोट नहीं कर पाएंगे तो कोरम बनेगा नहीं। तो आई होप थोड़ा क्लैरिटी आ गई। Yes, sir. ओके, चलो गाइस, आई थिंक इट्स 4:22। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक नाउ। एक फास्ट वाली ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, चलेगा आप लोग को? भाइयों बोलते ही नहीं यार तुम। Yes, sir. Yes, sir. एक ब्रेक ले लेते हैं जल्दी से, और सर अच्छे से ब्रेक लो यार। मतलब 4:22 हुआ है, 4:45 को मिलते हैं। आई एम बीइंग वेरी जनरस। 4:45 को मिलते हैं, 4:45 को मिलते हैं, चलेगा? Yes. Okay, 4:45 को मिलते हैं, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर्स ओनली। हम लोग 149 से बहुत फास्ट, अभी हम लोग रेगुलर हैंड रिटन नोट्स में आ जाएंगे। ओपनिंग चैप्टर मैंने प्रेजेंटेशन में इसलिए रखा था बिकॉज थोड़ा स्पीड में खेलना था।